أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سسٹرز کیسی ہیں آپ سب؟ الحمدللہ رب الحمدللہ. کوئی نہیں بتانا چاہتا کہ کیسے ہیں؟ الحمدللہ جی ثم الحمدللہ سب الحمدللہ. انشاءاللہ ایمان صالح کی بہترین حالت میں ہوگی انشاءاللہ. اچھا جی یہاں پر میں نے لکھا ہے اپنا جو آج کا جتنا ہم نے کورس پڑھ لیا کور کر لیا QC4 میں، اس گرامر کو میں نے تھوڑا سا ترتیب سے لکھنے کی کوشش کی ہے. اب آپ مجھے بتائیں علم الصرف میں سے ہم نے کچھ مس تو نہیں کیا؟ کوئکلی ایک ذرا نظر دیکھیں اور بتائیں مجھے. آئی تھنک آپ نے سب کچھ لکھ لیا. سب کچھ لکھ لیا الحمدللہ. اچھا جی. سسٹر رحیم، یہ جو اینڈ ہم والی ایسا لائن ہے کرتے نا ہیں وہ نظر نہیں آ رہی، تو اس کی کیا ریزن ہے؟ علم السلام النحو علیکم. جہاں پہ لکھا ہوا ہے. اس کے نیچے جی السلام جو لکھا ہے علیکم وہ نظر نہیں آ سسٹر وعلیکم رہا. السلام. سسٹر نورین اور سسٹر اقصا اور ساری سسٹر منیزے سب نے آپ کے ساتھ بہت اچھا ٹائم رہا. میرا تھوڑا سیل کا ایشو تھا، اس وجہ سے نا میں وہ جو ہے نا کوئی اتنا پارٹیسپیٹ نہیں کر سکی، لیکن میں دیکھتی رہی ہوں تو بہت مزہ آیا. اور اسپیشلی ٹیچر نورین آپ کا الحمدللہ. دیکھ کے نا جو آپ کا جذبہ تھا نا کہ ہمیں زیادہ سے شارٹ ٹائم میں سکھا سکے وہ بہت اچھا لگا. اور سب لوگوں کی جو تھی نا، سب لوگوں کا جو دیکھ کے نا ان کا جذبہ تو بہت اچھا لگا، بہت مزہ آیا. انشاءاللہ دعا کیجئے کہ ہم جو ہے نا الحمدللہ نیکسٹ لیول الحمدللہ پہ QC5 میں بھی ساتھ رہیں اور پوری طرح پارٹیسپیٹ کر سکیں انشاءاللہ. سسٹر اقصا، انشاءاللہ جی سسٹر انشاءاللہ منیز، جو انشاءاللہ. سب سسٹر نورین، سسٹر الحمدللہ سمیہ، سب کے سب ساتھ اپنی بہت مزہ دعا آیا. یاد کریں. سب ہاں کا جی بہت بالکل بہت شکریہ. ہاں جی، سب کا بہت الحمدللہ بہت شکریہ جی. ہاں جی. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ سب کے سیکھنے اور سکھانے میں برکات نصیب فرمائے. سسٹر آسیہ آمین. کون سا مجھے بتائیں کہ نہیں نظر آ رہا ہے؟ علم النحو لکھا ہوا ہے میں نے. جی نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، مجھے سمجھ آ گیا، وہ اسکرول کرنے سے ہی نظر آئے گا. مجھے لگ رہا تھا شاید یہ فل اسکرین میں سب کچھ نظر آنا چاہیے، لیکن نہیں ٹھیک ہے، ہمیں آ جائے گا انشاءاللہ بعد میں نظر. ٹھیک ہے، وہ میں نے صرف ابھی اتنا لکھا ہے، وہاں سے ہم شروع کر لیں گے اپنا نحو والا سلسلہ. جی ٹھیک ہے، اوکے. یہ اب آپ اپنے پاس اسکرین شاٹ لے لیں. اب آپ بتاتے تھے آپ اس پہ تھوڑا ٹائم لگائیں گے، جو ہم نے نیا سیکھا اس پہ ٹائم زیادہ لگائیں گے. ٹھیک ہے، میں اس پہ ایک نیا کھول لیتی ہوں، اس پہ پھر ہم دوبارہ واپس اسی سیکشن پہ آ جائیں گے. چلے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے ہم نے کیے ہیں مؤنث کے صیغے. تو اب آپ نے ایک ایک فعل خود ہی اپنی مرضی سے چوز کر لیں. سب سے پہلے تو آپ مجھے جو ہم نے سمپل ضمائر کیے تھے مؤنث کے، کوئی ایک سسٹر اس کا ٹیبل دہرا لے تاکہ یہ ہماری چیزیں ایک پر ریوائز ہو جائیں. اس میں ہم بہت زیادہ ٹائم نہیں لگائیں گے کیونکہ ہم کر چکے ہیں. سسٹر آسیہ نے ہینڈ ریز کیا، سسٹر آپ کر لیں. ہاں جی، پہلے ضمائر کر لوں. یہ ہوگا ہیا، ضمائر کر لیں ہن. جو ہاں جی جو ہمارے آئیں گے الگ ہو کے. ٹھیک ہے، متصل جس کو کہتے ہیں، فاصلے سے ڈیٹیچ والے. منفصلہ. منفصلہ سوری. ہیا، ہن، انتی، انا، انتن، نحنو. الحمدللہ. آپ دوسرے بھی میں اور کر دوں؟ اگر میں کہوں کہ آپ دوسرے والے بھی کر لیں جی. ہاں جی. اچھا، اسے کسی اسم کے بغیر اگر میں کروں گی تو ہوگا ہا، آپ اسم کے بغیر ہن، میں بھی کر لیں جی. ہا، ہن، کی، یی، کن، نا. نا. جی اور سسٹر حفصہ نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے. آپ ایک کام کریں، یہ جو آ رہا ہے نا ایرو چھوٹا سا آپ کی بالکل رائٹ مونس کے اوپر جو چھوٹا سا ہے، اس کے اوپر کلک کریں، آپ کی اسکرین بڑی ہو جائے گی. جی یہ والا. چلے آپ ٹھیک ہے. ہاں پہلے میں نے ایسے ہی کیا تھا تو ہاں وہ ہاں مجھے ہاں میں نہیں نظر آ رہی تھی، میں نے اس کو نکال لیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی. مؤنث میں سسٹر آپ اس کا چلے ربہ سے کر لیں.
आपने रब्बू से, हिया भी कर ठीक है। लिया, हा वाला भी कर लिया, आप रब्बुहू से कर ले। जैसे रब्बुहू से क्या आप करेंगी? अच्छा, मुजक्कर के, रब्बू से मुजक्कर के करूं या मुन्नस के ही नहीं, सिर्फ जैसे करूं? आप ये वाला बनाए, हमने रब्बुहू से क्या बनाना है मुअन्नस का? रब्बुहा, रब्बुहा। जी, इसको मिला। सिस्टर एक एक फिर मिनट आगे हो लीजिए जाएगा रब्बू, सिस्टर। रब्बुहा, रब्बुहुन्ना, रब्बू की, रब्बी, रब्बुकुन्ना, रब्बुना। अल्हम्दुलिल्लाह। सिस्टर मनीजे कुछ कह रही हैं? जी सिस्टर ये फिर से बता दें मुनफसिल और मुत्तसिल के बारे में। हाँ, ये मैं भी आज गड़बड़ा गई थी। मैं बताऊं? जी जी। ये मैंने सिस्टर तो हफ्सा पहले और ही कहा सिस्टर था आप नजमीन लोगों का ने बताना है, आज आप बहुत हमें अच्छा पढ़ाएं। बताती हैं। ज़माइर मुनफसिल फासले से याद रखना है, और वसल जोड़ना होता है, उससे मुतसिला याद रखने हैं। ठीक है। और ये कौन से होते हैं? इनको अटैच और डिटैच भी कहते हैं। ठीक है, अटैच वाले जो होते हैं ना, वो ये वाले होते हैं। मैंने आज इसको उल्टा कर दिया था। ये अटैच्ड होके आते हैं। इनकी जब आप देखें ना जमीरें, अब ये जो हाँ आपको नजर आएगा ना, छोटी सी एक लाइन भी नजर आती है, ये वाला हुन्ना साथ एक छोटी सी लाइन के, यहाँ पे कुछ इसके साथ जुड़ना चाहिए। ठीक है। इसी तरह से की है तो उसके साथ छोटी सी एक लाइन है कि कुछ जुड़ना चाहिए साथ। और ये जो है ये फासले से आते हैं। फासले से कैसे? यानी कि आप कहते हैं आप मेरा नाम, या मैं कहती हूँ इसका नाम आसिया है, फिर इसकी मैं आगे क्वालिटीज बताना शुरू करूं, फिर उसके बाद में ये चीज इसकी है। ठीक हो गया? अब ये अलग अलग हम इसको इसी तरह से याद रख लेंगे कि मुनफसिल जो होते हैं वो फासले से आते हैं, ये जुड़ जुड़ के नहीं आते। ठीक है। और जो मुत्तसिल है ये जुड़ के आएंगे। अच्छा जी, हमने इसका एक रब्बुहू का कर लिया। अब हम ऐसा करते हैं, अब कोई और सिस्टर आ जाए, किसी फेल के साथ आप मुअन्नस के सीगे दोहरा लें, ठीक है, ताकि क्विकली ये हो भी जाए हमारा काम। जी जी, सिस्टर जुवेरिया। नसरू से बना लूं। नसारा नसर से कर लें। नसर नसरुहा। नहीं 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 नहीं, नसरत। नसरत, सॉरी सॉरी। अब उसको हाथ ना जोड़े, फिर वो हमारा एक वो जुमला बन जाएगा। अभी जुमले नहीं बनाने हमने। हाँ जी। नसरत, नसरत, नसरना, अल्हम्दुलिल्लाह। नसरती, नसर तू, नसर तुन्ना, नसरना। नसरना। ये आपने बनाया अटक अटक के। ठीक है, अब आप फटाफट जल्दी से बनाए, आपको समझ आ गई मैंने क्या बनाना है। फताहत से हाँ बना ले। जी। फतहत, फतहता, फतहना, नहीं फतहता, गड़बड़ कर दी। फताहत फताहना, आगे। फतहत, फतहना, फतहती, फतहतू, फतहतुन्ना, फतहना। फताहना, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब आपसे मैं अगर कहूँ मुदारे बना लें इसका। हाँ जी। तफ्तहू, तफ्तहू, और हम यहाँ पे क्या कहते हैं? जब कहते हैं यफ्ताहू यफ्ताहूना, तो हम इस तरह क्या करेंगे? तफ्ताहू यफ्तहुन्ना, यफ्ताहना। ठीक है। यफ्तहना। हाँ जी। तफ्तहू, यफ्तहना, तफ्तहीना, तफ्तहीना, अपनी तरफ अफ्तह, मैं अफ्तहू। बोलती हूँ। हाँ जी। ठीक है। तफ्तहीना, अफ्तहू, तफ्तहुन्ना, और नफ्ताहना। तफ्तहना, नफ्तहना। अच्छा, आपने एंड पर नून क्यों लगाया? मुझे ये बताएं जरा, नफ्ताहना क्यों किया आपने? नफ्ताहू क्यों नहीं किया? पता नहीं क्यों नहीं। बहुत अच्छा, कंफ्यूज। अब मैं आपको बताती हूँ। आप ऐसा करें, चाहे बुक से देख के करें, चाहे जल्दी से कोई एक टेबल लिख ले। मैं
वो आपको टाइम देती ना, मैं ये तो नहीं कहती कि पहले मैं नाम लूं फिर मैं कहूँ कि आप ये वाला टेबल बनाएं। आप जो भी हैंड रेज करें उसको पहले अपने पास लिख लें, ताकि ना ये जो रवानी है ना आपकी, जैसे हम यहाँ पे हमारी बहुत रवानी है, जैसे हम कहते हैं फतह फतह फतहता फतहतु फतहतुम फतहना और फतहत, ये हमारा जो सात सी ये बड़े पक्के पक्के हो जाते हैं। इधर जब हम आते हैं ना हमें थोड़ा सा सोचना पड़ जाता है, ठीक है, ये हम आहिस्ता आहिस्ता करते हैं और थोड़ा सा बीच में गड़बड़ आती है, हमें बहुत आदत पड़ी है ता कहने की, ती कहने में थोड़ा सा हमें झिझक सी आ जाती है कि अब इसके बाद मैंने ये क्या करना था इसके बाद। और फिर जब खास तौर पे हम आते हैं मुदारे पे, उसमें ज्यादा गड़बड़ होती है, क्योंकि उसमें देखे ना जो अफआलू और जो है नफआलू, उसमें फिर ये होता है कि थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है बंदा कि उधर से हम तेजी से पढ़ रहे थे, यहाँ पर क्या हो गया। अब कोई एक सिस्टर करें, अब मैं देती हूँ आपको असलमा, ठीक है, असलमा से आप असलमत वाला भी बना लें और युस्लिमू से तुस्लिमू भी बना लें। असलमा का टेबल है आपके पास। जी सिस्टर मैं बनाऊं? समीरा ने हैंड किया, जिसने कहा है मैं बनाऊं, चले वो बना लें। जी जी मैं करती हूँ। असलम जी का, जी असलमत, असलमना, असलमती, असलमतु, असलमतुन्ना, असलमना। अच्छा जी, अब और इसका वो मुदारे बना भी लें मुदारे। मुदारे तुस्लिम, युस्लिमना, तुस्लिमीना, अभी हमने इसको तुस्लिम। सिस्टर देखें, जब शुरू करना है ना आपने, तो आपने उसको जज्म नहीं देनी, ठीक है। जज्म के पीछे फिर मैं आपसे पूछूंगी क्या वजह है इसकी, आपने क्यों जज्म लगाई, फिर उसके लिए आपको कोई वजह लानी पड़ेगी, ठीक है। पर सबसे पहले तुस्लिमु करें। ओके, तुस्लिमु, युस्लिमना, तुस्लिमीना, उस्लिमु, तुस्लिमना, नुस्लिमु। मुस्लिम, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, एक सिस्टर बना लें अल्लामा। जी मैं बनाती हूँ। अल्लाम, बना लें अल्लाह, हाँ, अल्लाम, अल्लामत, अल्लामा सबसे पहले, अल्लामत, फिर हाँ जी, अल्लामत, अल्लम, अल्लमना, अल्लमती, अल्लमतु, अल्लमना, अल्लमतुन्ना, अल्लमना। अलमना, ये वाला ना लंबा हो हाँ जाएगा जी, और अल्लमना, ये जो हाँ जी, इधर है बस वो अल्लमना, तकदीर के आगे से, ठीक हो गया जी। और इसका अगर हाँ मैं जी। कहूँ मुदारे भी बना दें, इसका इसका अल्लामा मुजारे का, युअल्लिम, पहले आप इसका हाँ जो जी, मुजक्कर वाला अपने ध्यान अच्छा, में लाया करें, फिर अच्छा, ये जल्दी याद हो अल्लामा, जाएगा। हाँ, अल्लामा युअल्लिमु, हाँ जी, अब शुरू करें। इसका होगा ना मुजारे मुजक्कर, आगे इसका पूरा मुजक्कर का बनाऊं? नहीं मुजक्कर वो रहने दें, अब आप तो अल्लिमु पे आ जाए। हाँ जी, तो अल्लिमु, तो अल्लाह, तो अल्लिमना, यो तो अल्लिमना, यो अल्लिमना। युअल्लिमना, हाँ जी, इसको जी ऐसे जी याद कर शुक्रिया। लें, युअल्लिम, युअल्लिमुना युअल्लिमना युअल्लिमुना युअल्लिमना, फिर ये याद हो जाएंगे। हाँ हाँ, युअल्लिमना, तो तो अल्लिमीना, उअल्लिमु, तो अल्लिमना, नुअल्लिमु, ठीक हो गया नुअल्लिमु। जी, नुअल्लिम। अब ऐसा करते ये हैं, अब खुद ही सबने एक एक टेबल चूज करके एक ग्रुप में सुना देना है, ठीक है। मुअन्नस वाला बहुत जरूरी है इसकी प्रैक्टिस। अब यहाँ पे हम करेंगे तो फिर इसी में बहुत सारा टाइम निकल जाएगा, ठीक है। सबने एक एक टेबल अपने पास लिख लें, लिखें अपने पास, ग्रुप में सुनाएं। सुनाने से क्या होता है, सुनाने से रवानी आ जाती है, ठीक हो गया। अब ऐसा करते हैं, थोड़ा सा हम तस्निया को देख लेते हैं। तस्निया हमने मुजक्कर और मुअन्नस दोनों का QC4 में किया है। अच्छा जी, अब अगर मैं कहती हूँ कि आप चले सिंपल वाला टेबल, हम नौसरा से शुरू किया था, नौसरा से ही ले लेते हैं। मौसरा और नौसरत, इन दोनों का तस्निया बना लें। जी सिस्टर आसिया ने हैंड रेज किया। नसरा और नसरता। नसरता, यहाँ पे कौन सी चीज हमने याद रखनी है, इस ता एक पर जबर और जजम अलिफ। नहीं पढ़नी, ठीक है, जबर ये लाजमी है। और हमने यहाँ कहा था यंसुरु, और यहाँ हमने पढ़ा है तंसुरु। अब इसका भी तस्निया बना लें। जी बना लें यंसुरानी, सिस्टर, आप बना। जी, यंसुरानी, तंसुरानी। तंसुरानी, और तंसुरानी कितनी बार आना हमारे टेबल में जब हम 14 सीखे लिखेंगे? 3 दफा।
3 दफा। ठीक हो गया। ये क्लास के एंड में मुझे याद कराइए कि मैं आपको इसका एक आसान सा तरीका भी बताऊंगी जहां पे हमारे ये सारे 14 के 14 सीखे कंप्लीट हो जाते हैं, वो सिर्फ अपनी याद दहानी के लिए। ठीक हो गया। यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है ना कि किस तरह से हमने इसका बनाना है तस्निया? ठीक हो गया। जिस तरह तस्निया हम बनाते हैं अफआल का, इसी तरह से हम तस्निया बनाते हैं अस्मा का भी। अस्मा का किसी को याद हो? मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, ईमान, मुस्लिमानी, मुस्लिमानी। ठीक हो गया जी। मुस्लिमानी और मुस्लिमैनी। ठीक है, मुस्लिमैनी। ये जिनको तजवीद के बारे में इल्म है, ये जो होती है ना, ये या लीन के साथ आ जाती है, नरमी से अदा हो जाती है। यही जो हम लीन वाला कायदा करते हैं हम तफालीना में भी करते हैं। क्यों क्या? इसको इस तरह से याद रखना आसान हो जाता है। और अगर ये होगा मुस्लिमा तो चले मैं जरा एक नजर बाहर देखा हूँ, पूछ लूं कौन आ गया। सिस्टर सानिया आपने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया है मुत्तसिल और मुनफसिल। मुझे एक्चुअली उर्दू के जो वर्ड्स है ना वो लिंक करने बड़े मुश्किल हो जाते हैं, तो आपने बड़ा अच्छा सा समझा दिया, थैंक यू। जी अच्छा जी, मैंने पूछा था अगर मुस्लिमातुन होगा तो इसके लिए हम क्या करेंगे? मुस्लिमातुन, इसका मैं तस्निया पूछ रही थी। ये जो मुस्लिमानी है ना, इसी में एक ता लग जाती है। कौन सी वाली? जो हमारी मुअन्नस की निशानी है। ये यहाँ पर QC4 में आपसे रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन ये कि हमें चले अंदाजा होना चाहिए, हम फीमेल से हमें पता होना चाहिए कि जब 2 औरतें होंगी, 2 मुसलमान औरतें, तो हमने कैसे करना है। ठीक हो क्या? अच्छा जी, इसके बाद हमने पढ़ा था मजहूल। मैं सही जा रही हूँ? कुछ मैंने मिस तो नहीं किया? जहां तक जो मैंने लिखे हुए थे, किसी ने अगर स्क्रीनशॉट लिया हो। ठीक जा रही। चले अब थोड़ा सा मुझे मजहूल का कोई करके दिखाएं। एक टेबल ले लें। आप पहले अब टेबल अपने पास लिखें, जल्दी जल्दी से उसके सीगे लिख लें। साथ साथ वाले लिखा करें, मतलब उसमें आप बहुत ज्यादा मुअन्नस के सीगे बेशक ना डालें। सिर्फ जो मुजक्कर के हम दाएं हाथ से करते हैं उसका मजहूल बनाना आ जाए तो इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह वो दूसरा भी नहीं भूलेगा, मुअन्नस वाला। अच्छा जी, टेबल हम कौन सा ले लें? मौसरा का तो अमूमन लिखा हुआ होता है, हम ले लेते हैं टेबल आलिमा। आलिमा या अलमू। हमने कुछ बातें कही थी, कोई अगर बता दे मुझे। 3 बातें हमने यहाँ पढ़ी थी जो हमने सिंपल वाले बनाने हैं। जिसको भी याद है जल्दी से बता दें। शुरू में पेश आता है, हाँ, हमने कहा था पहले वाले को छोड़ना नहीं है, ना नहीं, आखिरी को छेड़ना नहीं, और दरमियान आखिर वाला जो है उस पे पेश, अलीमा। शुरू में पेश और दरमियान वाले को दरमियान वाले को क्या करेंगे? ये अभी हम सिर्फ माजी का बता रहे हैं। दरमियान वाले को आइन कलमा, अब यहाँ पे आइन आलिमा में, कलमा, हाँ जी, ये क्योंकि से पहले से जेर है ना, अगर मैं यहाँ पे नौसरा लिखूं फिर ज्यादा जरा समझ आ जाएगी। फिर ये क्या बन जाएगा? पहले वाले को आपने बताया पेश नूसीरा, नुसीरा, नूसीरा, नूसीरा। अब आलिमा से क्या बनेगा? उलीमा, उलीमा, उलीमा।
उलिमा। अब उलिमा चूंकि यहाँ पर पहले आइन कलमा पर जेर थी ना, तो उसके इतना फर्क हमें पता नहीं चला। और अगर हम बात करें मुदारे की, तो मुदारे की तब्दीलियां बताइएगा। अल्लमा यूं सारा हाँ, पहले वाले पहले जो वाले उल्लमा को पेश, पहले वाले को पेश देनी है। ठीक है, उल्लमा पहले वाले को पेश देंगे, उसके दूसरे बाद वाले को आखिरी को क्या करेंगे? तो जबर आखिरी को फिर आखिरी छेड़ना वाले को नहीं है। छेड़ना आखिरी को छेड़ना ही नहीं है। और दरमियान वाले को जबर। सेकंड सेकंड दरमियान लास्ट पे वाले को होगा। और सेकंड बाकी लास्ट, ये अगर बहुत अच्छा रहता है जब हम सेकंड लास्ट कहते हैं ना, उसे याद रह जाता है। और अगर बड़ा फेल है तो उसके जो बाकी जो भी होंगी उनको पेश दे देंगे और जज्म जज्म रहेगा। और तो आज जबर आप सब लोगों ने एक नया फेल सीखा, कौन सा? बड़े लफ्ज वाला। ठीक है सिस्टर मनी से, ठीक है। अब हमने मजीदगी को क्या करना है? ये बड़े लफ्ज से वाला, पेश। बड़े लफ्ज वाला। ठीक तीन हो गया सलासी जी, मुजर्रद से जो होते हैं जो मजीद फी वाले। ज्यादा होंगे। ठीक है, ये मैंने हाँ राह मजाक ही कहा, लेकिन ये क्या होता है, ये टिप्स होती हैं, इससे याद आ जाता है कि अच्छा फलां सिस्टर ने इस क्लास में ऐसे बोला था, इसकी तब्दीलियां आगे आ रही हैं। इन चीजों को फटाफट से पिक कर लिया करें, मैंने याद कर लिया। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ पर शुरू से क्या बन जाएगा, ये मुझे कोई बता दे। योंसरू, यूं स्वरू, ठीक हो गया। और अगर हम कहें यालमू से क्या बन जाएगा? योलमू, युलमू। और अगर मैं आपसे कहूँ कोई एक सिस्टर बना लें, इसका आलिमा से बना लें, और फिर वही सिस्टर मुदारे का यालमू से भी बना लें, ये वाले सीखे। एक पहले बोले माजी का, उसके बाद सारे उसी तरह से बोलते जाएं। मैं बोल दूंगी। जी जी बोलें। उलिमा, उलिमू, उलिमता, उलिमतु, उलिमतुम, उलिमना, हिया, अल्हम्दुलिल्लाह। उलिमत। यु यु युलमू, युलमू। युलमु, युलमूना, तुलमु, उलमु, तुलमूना, नुलमु एंड तुलमु। और वो जो हिया तो अलम, ठीक हो गया जी। अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा मजीद फी के बारे में। वो बाकी चीजें तो यही होंगी, थोड़ी सी जो तब्दीली हमने आगे करनी है उसको भी हम इस तरह से सीख लेते हैं। कुछ हमारे पास 5 हरूफ वाले आ जाते हैं और कुछ 6 हरूफ वाले आ जाते हैं। तो माजी का जरा मुझे बताइएगा, माजी में हमने इसके अलावा और कौन सी तरकीब करनी है उसमें? जैसे हम लिखते हैं इख्तलाफा। जी हम जी इसमें ये बताइएगा। करेंगे कि पहली वाली हरकत को पेश से बदल देंगे, तो आखिरी में तब्दीली नहीं करेंगे और जज़म जज़म ही रहेगी, और बाकी हरकत अलिफ हाँ जी, तो हाँ जी यही हो जाएगा। तुलिफा जबर कर देंगे मैम। सेकंड जी लास्ट हरफ को जेर देंगे और बाकी मुतहरिक हरूफ को पेश दे देंगे। और बाकी जबर को जबर, और बाकी हरकत सेकंड लास्ट को कसरा कर देंगे ना, यानी जेर दे देंगे ना, सेकंड लास्ट को जेर दे देंगे, सेकंड लास्ट को कसरा बना देंगे। जेर दे दी, ठीक है, या कसरा दे दी, ठीक हो गया। और एक जो रह गया मुतहरिक हरूफ को पेश, बाकी सब पेश। बाकी मुतहर्रिक हरूफ को पेश कोई पेश। तब्दीली अच्छा नहीं, जी, पेश वो जो दे देंगे, जज़म है वो सही। जज़म रहेगी, ठीक हो गया जी। अब ये हमारा इस रूल के मुताबिक बन गया है ओ तुलीफा, ओ तुलीफा, ठीक हो गया जी। पहला जो है पेश भी आ गई, साकिन साकिन रह गया, आखिरी को हमने छेड़ा नहीं है, सेकंड लास्ट को जेर दे लास्ट दी, पे जेर और आ गई। बाकी जितने मुतहर्रिक थे उसको हमने पेश दे दी। इसी तरह से अगर मैं लिखती हूँ इस्तगफरा, इसका क्या बन जाएगा फिर? गुफीरा, ठीक हो गया। इसी का हम मुदारिफ देख लेते हैं, ठीक है। मुदारे है यख्तलिफु। अब यख्तलिफु से हम क्या कर लेंगे? युख्तलफू, युख्तलफु
युख्तलफु, इसमें सिर्फ ये है कि शुरू में पेश दे दी, सेकंड लास्ट को जबर दे दी, साकिन साकिन रहेगा, बाकी जो जो तब जिस तरह से है वो उसी तरह से ही रहेंगे। ठीक हो गया? युख्तलफु मैंने छेड़ दिया था। अच्छा जी, यस्तगफिरु से बनाइए जरा। युस्तगफरु, युस्तगफरु, युस्तगफरु। युस्तगफरु। और अभी ये जो हमारे मुंह में आ जाती है ना एंड पे जबर, इसकी क्या वजह है? वजह बताएं। हथौड़ी वाला लफ्ज। हथौड़ी वाला लफ्ज, यानी कि इसका मतलब ये है कुछ अल्फाज हमने ऐसे पढ़े हैं जो मजहूल भी होते हैं और हथौड़ी वाले भी होते हैं। ठीक है, अब आप कोई एक सिस्टर इख्तलाफा से उख्तलाफा ये पूरा टेबल बना ले, इस्तगफरा वाला पढ़ ले, फिर हम इसको आगे इस मकान पे जाते हैं। उख्तुलिफा उख्तुलिफू एक आ जाए ना मुंह में, फिर उसकी पूरी गिरदान आसान हो जाती है। उख्तलिफा, उख्तलिफू, उख्तुली नहीं, उख्तलिफ, उख्तुलिफा उख्तुलिफा, उख्तुलिफू, उख्तुलिफ्ता, उख्तुलिफ्तु, उख्तुलिफ्तुम, उख्तुलिफना। अब इसका मुदारे होगा युख्तलफु, युख्तलफूना, उख्तलफु, तुख्तलफु, पहले तुख्ता, सॉरी, तुख्तलफु, फिर उख्तलफु, तुख्तलफूना, नुख्तलफु। अच्छा जी, और अगर मुअन्नस बनानी हो? तुख्तलफु, हिया तुख्तलफु। तुख्तलफु। अब कोई एक सिस्टर इस्तगफरा से उस्तगफरा सिस्टर सीधा ये करें। युस्तलफा नहीं। अच्छा, फा जो है ना, फा क्यों आ रहा है? मैं वही तो पूछ रही है, फा क्यों मुंह में आ रहा है? क्योंकि हमने ताजा ताजा वो वाला किया हुआ है ना। हम इसका जो सिंपल वाला कैसे बनाते हैं, आप सिंपल वाला बनाए जरा। इख्तलफा यख्तलिफू, ठीक है, ये इसकी डिफॉल्ट हालत है। ठीक है। अगर हम इसको जबर देंगे, सॉरी, या जजम देंगे, या कहीं जेर नजर आए, तो आपसे पूछा जाएगा कि इसकी वजह बयान करें। क्या वजह होगी? हथौड़ी होगी, या आपका चॉपर होगा, या फिर आपने मिलाने के लिए इसको किया होगा। ठीक है, अगर आप ये टेबल कर लें उस्तगफिरा, तो इसके बाद हम आगे बढ़ जाएं। मैं करूं? करिए। उस्तगफिरा, उस्तगफिरु, उस्तगफिरत, नहीं, उस्तगफिरता, उस्तगफिरतु, उस्तगफिरतुम, उस्तगफिरना। अल्हम्दुलिल्लाह। अब मुदारे हो जाएगा युस्तगफरु, युस्तगफरूना, तुस्तगफरु, उस्तगफरु, तुस्तगफरूना, नुस्तगफरु। नुस्तगफरु, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, मजहूल जरूरी है। क्यों जरूरी है सीखना? कुरान मजीद में बार बार ऐसे अफ़आल नजर आएंगे। अब अगर ये छोटी छोटी सी 4-4 5-5 बातें ये याद हो जाए तो इंशाल्लाह पहचानना आसान हो जाएगा। और आपको मजे की बात बताऊं, ये आपको 2 या 4 दफा देखना पड़ेगा इन चीजों को, उसके बाद ये आपको पहचाने जाएंगे। फिर आपको ये सारे कायदे ना भी याद हो, आप लफ्ज को देखकर पहचान लेते हैं, क्योंकि हमने पढ़ी थी शुरू में पेश आने वाली मुदारे में 4 वजूहात। ठीक हो गया जी। सिस्टर हफ्सा ने अगर अभी हैंड रेज किया है तो जी बताइए, अगर कोई आप देना चाह रही हैं अपनी टिप। हाँ, इसके अंदर एक चीज अभी मेरे जहन में आई है। जैसे अगर हम सलासी मजीद फी ही के अंदर कंफ्यूज हो जाता ना, तो अपने जहन में हमेशा वो QC 2 में जो हमने पढ़ा था नूसीरा वाला, वो जहन में रखें। हाँ, वो एक आपके जहन में होगा ना, वो आपको याद आ जाएगा कि एंड में जबर नहीं आनी, नूसीरा और यंसरू। ठीक है, तो वो यूं सॉरी। युनसरू, देखें भूल गई। तो ये जहन में रखें, तो वो इंशाल्लाह फिर कम से कम एंड वाली हरकत की वो नहीं होगी। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। और ये जो है ना भूलने और दोबारा से याद आने वाला जो सिलसिला, इस पे आप परेशान न हुआ करें। ये इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमने जैसे जैसे पढ़ते जाना है ना आगे आगे, हमने QC 5 में 6 में 7 में ये सारी चीजें दोबारा से अप्लाई करते करते याद आती हैं दोबारा। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, इसके बाद हमने एक पढ़ा है बाब कारूमा। कारूमा आपके पास लिखा हुआ मौजूद है, आप कर लें
बाऊदा, बाऊदा। और इसका हमने क्या खास बात देखी थी कि जो पहला वाला है हमारा माजी जो है उसमें हमने सेकंड लास्ट पर पेश पड़ी, और बाकी सारा टेबल किस टेबल के जैसा है? नसरो, नसौरा जैसा। तो बाऊदा से क्या बन जाएगा? या बऊदू। अगर कोई बाऊदा का टेबल करे, मैंने इसके ऊपर जज्म डाल दी, इसको मैं ठीक करती हूँ, आप पढ़िए, पढ़ना शुरू करें। बाउदा, बाउदू, बाउत्ता, बाउत्तू, बाउत्तुम, बाउदना। अच्छा जी, ठीक हो गया। और इसका मुदारे? यबउदू, यबउदूना, अबउदू, अबउदू, तबउदू, तबउदूना, नबउदू। अच्छा, आप मुझे बताएं, आप थोड़ी सी तरतीब क्यों चेंज पता कर नहीं रही हैं? क्या वजह पता हुई नहीं इसकी? क्यों आज मैं वही, आज सुबह मुझे ना QC1 वालों ने बड़ा ही तंग किया हुआ है। आज वो सुबह की मुझे अच्छा, वर्कबुक सेंड कर रहे हैं और पूछते जा रहे हैं, उनको बता बता के मेरी कोई अपनी जेब कोई से बात कोई बात नहीं। चले, सिस्टर समिया ने कहा था कि मैं करूं, किसी एक सिस्टर ने कहा था मैं करूं, तो आप कर लें, कारूमा का कर लें। जी मैं कर लेती हूँ। करूमा, जी कीजिए। करूमू, करुमता, करुमतू, करुमतुम, करुमना, करूमत। यकरुमु, यकरुमूना, तकरुमु, अकरुमु, तकरुमूना, नकरुमु, हिया तकरुमु। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, दो बातें इसकी होगी। पहला हो गया कि फेल माजी में आपको दरमियान वाला जो कलिमा होगा आइन कलमा पर पेश नजर आएगी, मुदारे हमारा नौसरा की तरह होगा, और इस्मुल फाइल कैसे बनाएंगे? सिफत की तरह, जैसे करीमुन, बाईदुन, फ़ईल के वजन पे। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक हो गया। और इसमें कौन सी खास बात है? ऐसे अफ़आल का इस्मुल मफ़ऊल नहीं होता, नहीं होता। और ये वाले जो अफ़आल हैं इनको हम कहेंगे ये फेले लाजिम है। ठीक हो गया। और फेले लाजिम जो होगा इसको हमने फिर थोड़ा सा आगे भी पढ़ लिया था। हमने कहा था कि मुबालगा भी मीम से होता है और मुताद्दी भी मीम से होता है। उसको थोड़ा सा हमने निशानियां लगा ली थी कि ये वाला इसको हम उसमें ले जाएंगे, सिफा में ले जाएंगे, इसको मुबालगा में ले जाएंगे। तो जो लाजिम पे आ जाए फेल लाजिम होगा, उसमें देखिए सिफत वाला जो करीमुन, ठीक है, लाजिम वाले हम ले जाएंगे सिफते मुशब्बा में, जबकि हम फेले मुतादी जिसमें ने वाला तर्जुमा आ जाए, उसने काम किया। अब जिसको मफूल की जरूरत है उसको हम मुबालगा में ले गए थे। ठीक हो क्या? इसी तरह से एक हमने टेबल किया है हासिबा। हासिबा में कौन सी खास बात है? इसका माजी किसके जैसा लग रहा है सुनने में? समिया, सामिया। और इसका जो मुदारे है दारबा, दाराबा की तरह। वाराबा की तरह। ठीक हो गया जी। अच्छा, इसके बहुत थोड़े से हैं, इसका हम जैसे वारिसा कर लें, वारिसा, यारिसु। कोई करना चाहेगा तो जरूर कर ले। और इसमें एक और खास बात है कि इसका जो इस्मुल फाइल है दो तरह आ जाता है। ठीक हो गया। हासिबुन भी आ सकता है और आहसाबु भी आ सकता है। आहसाबु, ये कौन सा आपको लग रहा है वजन? आहसाबु, आहसाबु, ahsanu, अकरमु, तब्दील अफअलु, तब्दील का अफअलु वजन। का, और इस्म तफदील का। देखें, थोड़ा थोड़ा सा हम ये जो पढ़ते जा रहे हैं ना, जो हम आगे पढ़ के आएंगे वो पीछे अप्लाई भी होता जा रहा है। अब वारिसा का टेबल अगर कोई करना चाहे तो माजी और मुदारे दोनों कर ले। बाकी पूरा जो टेबल है आगे से इसकी 6 6 चाबियां भी बनाई जा सकती है, वो उसी तरह से जैसे हमारा नसरा का टेबल बनता है, और जो बाकी तब्दीलियां हमने अभी देख ली हैं। वारिसा, वारिसु, वारिस्ता, वरिस्तु, वरिस्तु, वरिसना। कोई इस तरह से टेबल मुझे सुना दे एक बार, मेरे दिल को खुशी मिले। वारिसा, वरिसा, इकट्ठे पढ़ने कितना मजा आएगा। वारिसा से शुरू करिए। वारिसा,
वारिसा वारिसु वारिस्ता वारिस्तु वारिस्तुम वारिसना अल्हम्दुलिल्लाह। यरिसु यारिसूना अरिसूना दारिसू अरिसूना दारिसूना या दारिसी हिया तरिसु। अल्हम्दुलिल्लाह। और इसका क्या बन जाएगा इस फेल अमर? हम बनाते हैं इस इदरिब, ठीक हो गया जी। इदरिब, अब इहसिब, हम कहेंगे इवरिस, थोड़ा सा बोलने में मुश्किल लग रहा है। अच्छा जी, और इसके बाद इवरिस इवरिसु, ला तवरिसु, और इसके बाद फिर क्या बना लेंगे हम इसका? वारिसुन वारिसुन, इसका मफूल मौरूस बनाया जा सकता है मौरूसुन। और इसके फिर जो आगे मसादिर होते हैं वरसुन, और इसी तरह से विरसातुन, बहुत ढेर सारे बन जाते हैं। जैसे हासिबा से हसबानुन भी बन जाता है, हसबुन भी बन जाता है। सिस्टर रुबीना का हैंड रेस हुआ। सिस्टर मुझे पूछना था कि अमर तो हम मुजारे से बनाते हैं ना, मुजारे की मजारे से, निशानी को इसीलिए तो मैंने इसको इद रिब की तरह बनाया ना, इस की तरह नहीं बनाया। इद रिब इवरिस, उसमें फिर हम जेर दे देते हैं ना जब हम मुदारे दोहरा बा पे लेके आए। अगर लिख दें पाएंगे थोड़ा सा clear हो जाएगा। ये आपका तरीका होता है वजन पूरा करने का, ठीक है। सिस्टर अगर ये कारुमा है तो ये तो पेश वाला नहीं चलेगा। हासिबा, अच्छा हासिबा पे। हाँ जी, जो है ना हम टेबल बनाते हैं कारूमा पे, वो सारा हम पेश वाला ही बनाते हैं ना। अब जैसे उसका उकुरुम उकुरुमु, उसमें फिर वो तब्दीली की जरूरत वैसे भी नहीं पड़ती, क्योंकि वो पहला वाला हम पहले से चेंज कर चुके माजी, और जो नासरा है वो सारा उसी तरह से कारूमा और जो है मुतारे दोनों का एक जैसा हो गया। हासिबा में सामिया और द्वाराबा दो टेबल साथ आ रहे हैं ना, इसलिए थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है। और सबसे कम हासिबा वाला ही यूज हुआ है कुरान मजीद में। अल्लाह ताला ने मुश्किलों में डाला ही नहीं है इंसानों को, मुसलमानों को भी, खास तौर पे मुसलमानों को। पढ़ते तो सब है, सबके लिए है किताब, हिदायत की किताब है ना, लिल मुत्तकीन और लिन्नास, दोनों के लिए है। अच्छा जी, इसके बाद हमारा कौन सा इस्म मकान। इस्म मकान जो है, इसमें वो एक जो छोटी सी फ्रेज कौन सी है? मैं घर के मखरज से निकलकर, मस्जिद बताते जाए। जाता हूँ मस्जिद जाता हूँ, फिर मस्जिद, और फिर मदरसा जाता हूँ। फिर मदरसा, ठीक हो गया जी। अब ये क्या है? ये हमारे औजान है, ये वजन है। अच्छा जी, इसमें मखरज कौन सा वजन बन गया? मफअलुन मफअल मफअल और मस्जिदुन। इसका क्या, मैंने वो मस्जिद में दोबारा लिख दिया, मफइल मफइलुन मफइलुन और मफअलतुन, और इन सब की जमा एक जैसी है। मखरज से मखारिज मखारिज मखारिज, मसाजिद मैंने मसाजिद गड़बड़ की, मैं इसको दोबारा लिखूंगी। अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए जी। अच्छा जी, हमने कहा था कि इसके थोड़े से इशारे भी ना, शेर के करीब, इसका मतलब है जब तक जात मौजूद है सिफत मौजूद रहेगी। ठीक हो गया जी। तसलसल कब तक होता है? जब तक जात मौजूद है तब तक तसलसल कायम है। जात खत्म, तसलसल खत्म, वो सिफत खत्म। जैसे कोई इंसान बहुत रहीम है, बहुत रहम करने वाला है, लेकिन जब वो खत्म हो गया, उसकी जिंदगी शैरग खत्म, उसकी सिफत खत्म। अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात हमेशा से है, हमेशा रहेगी। तो जब अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारे में हम इस तरह का जब पढ़ेंगे, फ़ईल का वजन, और इसी तरह से हम देख लेंगे कि फेल ये जो आ रहा है
लाजिम से सॉरी मुतादी किया, जैसे उसने मदद की नौसारा। जब नसीर आ जाएगा और अल्लाह ताला के लिए यूज करेंगे तो हम कहेंगे सिफत और मुबालगा दोनों हैं। इंसानों के लिए क्या होता है, इंसानों के लिए हम सिर्फ या तो सिफा कहते हैं या सिर्फ मुबालगा। तो सिफत, तफदील और मुबालगा। जो इसम तफदील है वो इनमें से आसान है। वो कैसे आसान है, उसका एक ही वजन है, और वो हमने वजन क्या पढ़ा हुआ है उसका, अफ़अलु वाला वजन। अफ़अलु ना आसान है। अहसनु, अकरमु, फा है। सिफा में क्या आपको अहम बात नजर आई थी जो हमने पढ़ा, इसके कौन कौन से हमने कहा था वजन है? एक तो फ़ईल है और दूसरा वजन क्या है? फालान फालान फ़अलान। अच्छा जी, ये हो गया हमारे सिफत के औजान। और ये जब जब आते जाएंगे ना कुरान मजीद में, इनको हम साथ साथ भी देखते जाएंगे। बहुत ज्यादा इसको जो रट्टे की तरह याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ये अल्फाज आते ही जाएंगे कुरान पाक में, हम उनको साथ साथ अप्लाई करते हुए देखते जाएंगे। ठीक हो गया। इसके बाद हमने कहा था कि जो है मुबालगा, जिसमें ज्यादती दूसरों के मुकाबले में ज्यादा हो, सबसे ज्यादा पाई जाए, इसके हमने मुख्तलिफ औजान पढ़े हैं। कौन कौन से हैं जरा मुझे बताइएगा। फाल फाइल फईल, फाउल फऊल और फाउल फऊल अच्छा, और इसको और हमने फुऊल। कैसे याद रखना, अल्लाह ताला के नामों के साथ। तो अगर मैं पूछूं फ़आल, ये जो तशदीद वाला है, इसके साथ हम कौन सा नाम गफ्फार कनेक्ट करके इसको याद गफ्फार, रखेंगे? अव्वाब, अल्लाम, अल्लाम, गफ्फार। गफ्फार, अच्छा जी, इसके बाद जब हम कहेंगे फ़ईल, फईल के रहीम, साथ रहीम रहीम, रसीद, सईद, अलीम, अलीम, नसीर, अच्छा, और कदीर, इसके बाद हम कहेंगे दो है ना, एक कबीर। है फ़ऊल, जिसमें इसमें वो नहीं है, तशदीद नहीं है। हाँ जी, शकूर तो शकूर, वदूद आएगा गफूर, इसमें। वदूद, वदूद सबूत। जी, वदूद हो गया। वदूद आएगा। और इसके बाद एक वो जो ओम, वदूद, बिल्कुल, शकूर भी आ जाएगा, वदूद भी आ जाएगा। अच्छा, अब एक और होते हैं, हम पढ़ते हैं आयतुल कुर्सी में, कय्यूम। कय्यूम, कय्यूम, और वो मुशद्दद, वो तो फऊल, फऊल में आएगा ना, तशदीद वाले। तशदीद वाले। तशदीद अच्छा, वाला। तशदीद वाले में दो है ना, एक जो है वो है पेश वाला और एक जबर वाला। कय्यूम पे हम क्या पढ़ते हैं? जबर, पेश, जबर, जबर कय्यूम। नहीं, पेश पढ़ते हैं, पेश। कय्यूम, कई पेश कय्यूम पढ़ते होता है, हैं, कय्यूम नहीं होता। ठीक है, उसको हम पढ़ते हैं कय्यूम। सुबूहुन। हाँ, सुबूहुन, और एक और भी है कुद्दूसुन। कुद्दूस कुद्दूसुस्सलाम। अच्छा जी, जो सिफत में फिर आगे और क्या बताया गया, जो फ़ईल वाला वजन है उसको हमने थोड़ा सा ऐसे याद रख लिया था। अकबर, जब फ़ईल हो, अफअल, अब फ़ईल का लिख के ना हम ऐसे एक छोटा सा टेबल बना लेते होते हैं ना। ये लाजिम हो तो क्या होगा, और अगर ये मुतादी हो तो क्या होगा। लाजिम वाला हो तो उसको हम क्या कहेंगे, ये इसम सिफा सिफ है। ठीक है। और और अगर मुतदी ये मुबालगा मुबालगा, ठीक है, कौन सी चीज से याद रखना, इस मीम से याद रख लें। लाजिम वाले कौन से होते हैं, वो गया, वो आया। जबकि मुतादी वाला तर्जुमा कैसे हो जाता है, उसने खाया, उसने पढ़ा। अब ये जो ने भी बताएगा और वो गया, उसके जाने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो जहां मर्जी जाए। उसने खाया में आगे सवाल हम कर सकते हैं, उसने क्या खाया, उसने पढ़ा क्या पढ़ा उसने। सिर्फ समझने के लिए कुछ स्टूडेंट भी ऐसे भी कहते हैं वो गया, तो हम पूछते हैं कि वो कहाँ गया, क्यों गया, वो उसके बाद की बातें हैं। लेकिन वो गया, पूरी बात समझ में आ रही है। उसने खाया, अब उसने खाया में आप सोच में पढ़ सकते हैं उसने क्या खाया है। तो अब ये जो ने वाला तर्जुमा, इसको एक निशानी बनाया, जिसको मफूल की जरूरत होगी उसको मुतादी कहेंगे, जिसको मफूल की जरूरत नहीं है वो लाजिम होगा।
اور اس کی جب ہم اپلیکیشن کریں گے نحو میں قرآن پاک کی آیات پر، تو اس کو مزید ہم بہتر طریقے سے سمجھیں گے کہ یہ جو نئے والا ترجمہ اور وہ والا ترجمہ ہم نے کیوں کیا تھا، کیوں اس کے آگے ہم دیکھ رہے تھے کہ اگر مفعول آ رہا ہے نہیں آ رہا تو اس سے کیا فرق پڑ رہا ہے۔ جی سسٹر حفصہ۔ اچھا، اس کے اندر ایک اور بھی یاد کر لیں، متعدی میں اس نے قتل کیا، ٹھیک ہے، ظاہر ہے کسی چیز کو تو قتل کیا کیا ہوگا، یہ تو لازمی کر لیں، نہیں تو سسٹر ہاں، حفصہ ارادے نیک اور نہیں لگ رہے مجھے۔ اور اس نے مارا، دونوں چیزیں یہ کر لینا تو پھر یاد رہے گا کہ اس کو کسی نہ کسی چیز ہمیں پتا ہونا، ایسے سمجھ نہیں آئے گی کیا اس نے کس کو مارا یا اس نے کسے قتل کیا، ٹھیک ہے۔ اس نے قتل کیا اور اس نے مارا۔ اب قتل کرنے کے لیے بھی کوئی نہ کوئی چاہیے اور مارنے کے لیے آپ کے پاس بچے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ چلیں جی، یہ تو چھوٹی سی ہو گئی مذاق کی بات بھی، لیکن ان چیزوں کو جب ہم جوڑ لیتے ہیں اپنے اسباق کے ساتھ تو جو گرامر سنجیدہ سا ایک لگ رہا ہوتا ہے ٹاپک، اس سے بھی تھوڑا آپ یہ کہ چلیں خوشی سے کر لیتے ہیں، خوشی خوشی کر لیتے ہیں کہ نہیں؟ جی جی بہت اچھا بہت اب خوشی اس میں سے الحمدللہ اس میں سے ہمارے پاس جو رہ گیا ہے وہ ہمارا جمع مکسر والا رہ گیا ہے۔ اچھا، جمع مکسر کے بہت سارے اوزان ہیں، ان کو آپ نے کیسے یاد کرنا؟ آپ ہاتھ رکھیں ایک طرف سے پڑھتے جائیں، اس کے جو واحد ہیں پھر جمع، کیونکہ ان کا کوئی ایک خاص قاعدہ نہیں ہے، اس کو اس طرح سے یاد کر لیں جیسے آپ بچپن میں اپنے واحد جمع وغیرہ یاد کیا کرتے تھے۔ اب اس کے بعد اور تھوڑا سا ہم نے ایک اور چیز سیکھی تھی، وہ چیز ایسے سیکھی تھی، ہم نے کہا کہ کچھ الفاظ جو قاعدے ہیں قرآن مجید میں یا عربی زبان میں وہ اس طرح سے لیے جاتے ہیں کہ میں نے تھوڑا سا آپ کے لیے لکھا بھی تھا تاکہ تھوڑا ہمارا ٹائم بچ جائے۔ جمع مکسر کے لیے واحد مؤنث کا اصول، یہ اصول کیسے کہ جب ہمارے پاس جمع مکسر آ جائے، اور ایک بات ہم نے کی تھی کہ عاقل میں بھی کبھی کبھار نظر آ جائے گا کہ واحد مؤنث والا قاعدہ لگ گیا، اور کبھی کبھار یہ ہوگا کہ عاقل ہے تو اس کے ساتھ اگر مذکر کے ساتھ مذکر والا صیغہ ہی یوز کر لیا جاتا ہے، لیکن غیر عاقل میں آپ دیکھیے گا کہ غیر عاقل میں زیادہ تر اسی طرح سے نظر آئے گا کہ اسم اشارہ جیسے حاضی ہی، تلکا وغیرہ، اور بھی جو ان کے جمع کے ہیں جیسے تلکا کے ساتھ ہم اولائکا کریں، اور اگر حاضی ہی ہے تو اس کی کیا تسنیہ وغیرہ کیا بنے گی، اس کی جمع کیا بنے گی؟ اب حاضی ہی تسنیہ ایک جیسی بن جاتی ہے، اور جو ہے ہماری جمع وہ بھی ایک جیسی ہے۔ تلکا اولائکا، حاضا حاضی ہی، اور اس میں ہی اور ہا جو ضمائر ہیں وہ بھی اسی طرح سے آ جائیں گے۔ اب یہ واحد ہی آنے، اب حاضی ہی آنا ہے، تلکا ہی آنا ہے، اور جو ہمارے ضمائر ہیں ہی اور ہا کون سا ہے؟ ربو ہا والا۔ اب یہ جو ایک مثال لکھی گئی ہے ازواج مطہرات، یہ اس لیے کہ یہ ازواج جو ہے تو عاقل، زوج کی جمع ہے، عاقل ہے، لیکن یہاں پر بھی یہ رول چل گیا کہ یہ جو صفت ہے، صفت کس کو کہتے ہیں؟ ایک صفت آپ نے یہ والی پڑھی ہے نا، ایک اور ہم پڑھیں گے انشاءاللہ QC5 میں کہ ایک اور طرح کی صفت پڑھتے ہیں، تو وہ جو صفت ہم ازواج مطہراتن، تو یہاں پر بھی یہ والا جو قاعدہ یہ لاگو ہو گیا۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ تنزل الملائکۃ، اس میں بھی جو مذکر کی جمع ہے تو عاقل، لیکن کبھی کبھار ہمیں نظر آ جاتا ہے، لیکن یہ جو بیوت لکھا ہوا ہے اس میں دیکھیں آپ کے پاس فعل بھی مؤنث آ گیا، اور اسی طرح سے اس کی جو ایک صفت تھی وہ بھی مؤنث آ گئی، اصبحت البیوت جدیدۃ، اور اگر میں کہوں آپ اس کا واحد بنا لیں تو اس کو آپ کیسے بنائیں گے؟ اصبح اصبح البیت البیت جدید جدید، میں نے آپ سے الٹا کر کے بنوا لیا، مؤنث کا میں نے آپ سے مذکر بنوا لیا، اس کا مطلب ہے کہ الحمدللہ یہ ہماری انڈرسٹینڈنگ اس کے بارے میں ہے۔ اچھا جی، پھر سے ایک ہو گئی ہے جی، اوکے، اللہ حافظ۔ اچھا جی، جمع مکسر کو ہم دوبارہ آگے اور دیکھ لیں گے کہ جہاں جہاں پر یہ ابھی ہم اس میں دیکھتے ہوئے جائیں گے،
अब हमारे पास आ गया है नहव, ये भी नहव में आता है, ये जो आपने पढ़ा है ना जमा मुकस्सर के कायदे या इनके कवायद को लागू करना, ये भी आपका नहव में आ जाता है। सर्फ में क्या सीखा था हमने, हरफों को हेर फेर करके हर्फ के साथ हमने बना लिए थे अल्फाज। अल्फाज कैसे बनाए, ये अल्फाज हैं, फ़अला फ़अलु फ़अलता फ़अलतु, ये सारे अल्फाज हैं। इसी तरह से हमने बनाया, मुस्लिम था तो हमने उसके मुस्लिमातुन एक हरफ लगाया और उसको हमने बना लिया कि ये हम किस तरह से इसको जोड़ जोड़ के नए नए अल्फाज बना रहे हैं। नए अल्फाज बनाने, अल्फाज की जमा बनानी, मुअन्नस बनानी, सारी चीजें सीख ली, मजहूल भी सीख लिया। अब हमने कुछ थोड़ा सा आगे पढ़ा था जिनको हम फिक्रों पर भी ला सकते हैं ना, जैसे लम, लम्मा वगैरह, ये सारी चीजें। तो उसमें हमने देखा कि हम फेल मुदारे की हालतों पर गौर करें। फेल मुदारे में हमने देखा जो रफा की हालत है, जो इसकी अपनी असली हालत है, वो हमेशा आती है पेश के साथ। इसमें चूंकि तब्दीलियां नहीं है तो इसको हम छोड़ देते हैं, इसमें जरूरत नहीं है कुछ और करने की। इसके बाद हमने कुछ तब्दीलियां पढ़ी हैं मुदारे में कि हमें जबर नजर आ जाता है, इसी तरह से हमें कुछ में जज्म नजर आ जाती है। तो आप में से कोई मुझे बताए कि नस्ब की वजूहात क्या हमने पढ़ा था, कौन से अल्फाज हैं जो फेल मुदारे को नस्ब देते हैं? ला, ला या ली, ठीक है, लम, सोच लें। नहीं नहीं, आई थिंक सिस्टर वो जज्म वाले कर रही हैं। जज़म वाले हैं। ठीक है जी। ली, ला, लन, अन, अन, हत्ता। अच्छा जी, अल्लाह क्या है, इसको कभी खोल के देखा आपने? अन और नहीं ला। प्लस ला। और ला। अन प्लस ला है, और हत्ता के बाद भी हम कहते हैं एक अन छुपा हुआ है। ठीक हो क्या? इसमें से सिर्फ ये जो एक लन है ये थोड़ी तब्दीली और लेके आता है। अच्छा जी, इसी तरह से हमने जो पढ़े हैं जज्म वाले, वो भी जरा एक दफा बता दें। ला, लम, लम्मा, इन, मनमा, ली, फलवल। इन मनमा और ली मैंने वैसे ऊपर भी लिख दिया। ये ली फलवल ये असल में है भी एक ही चीज है, ये सारे एक ही चीज है। ये जो ली है इसका माना होगा ताकि, इस वाले का क्या माना होगा? चाहिए। चाहिए के। ये चाहिए, लामे अमर चाहिए है। वाला माना। ये लामे अमर है, इसमें हुक्म दिया जा रहा है, उन्हें चाहिए कि वो ये करें, उन्हें चाहिए कि वो अल्लाह के घर की इबादत करें। फल याबुदू, ठीक है, यहां से हमें पता चल जाता है कि ये कौन सा वाला। और ये ताके वाला ली या दबरू, ताकि वो नसीहत हासिल करें। ठीक है क्या जी? अब ये जो अल्फाज हैं ये हमें मुदारे की तब्दीलियां तो बताते हैं, इसमें हमें ये पता चल जाता है कि अच्छा इससे ये चीजें, ये जो बदल रहा है। अब ये जो बदलने वाला खास तौर पे नस्ब है, इसके बारे में QC6 में हमने और कुछ मजीद इसको एलिब्रेट करना है, इसको मजीद इसके बारे में सीखना है, तब इंशाल्लाह आपको और मजीद मजा आएगा। थोड़ा बहुत हम सीख लेंगे QC6 में भी, QC7 में जाते तो इंशाल्लाह फिर बहुत ज्यादा चीजें सीखने को मिल जाती हैं। अच्छा जी, अब मुझे आप बताइएगा कि ये जो मैंने कहा था यहाँ पर भी हम लम को अलग कर लेते हैं। अब हमने इसमें थोड़ी सी बातें पढ़ी थी लम के बारे में। लम क्या क्या कर देता है? मुदारे लम से जज्म, पहले आता है, नफी देता है, मुदारे जज़म, नफी देता है, और माजी में ले जाता है। इसी में ले जाता है। माजी, माजी में ले जाता है। और जब हम और इसकी जमा कमजोर बनाते हैं, नून गिर जाता है और कमजोर हरफ भी गिर जाते हैं। कमजोर हर्फ भी गिर जाता है, और जमा में क्या होता है, नून भी गिर जाता है। अच्छा था। ठीक हो क्या? और ये जो है लन, ये भी एक काम करता है ना, ये भी नफी ये भी करता है। ठीक है, बाकी सारे अल्फाज अन नफी नहीं करेगा, लेकिन लन क्या करता है, ये नफी करता नफी है, और मुस्तकबिल। मुस्तकिल में ले मंसूब जाता है। करता है। और अब वो जो दो माना थे उसमें से हाल वाला माना निकाल देंगे, सिर्फ वो जो मुस्तकबिल वाला माना रह जाएगा। ठीक हो गया? इसकी काफी सारी हमने प्रैक्टिस की भी है।
ठीक हो गया। अब हम इसका ना एक दो मिसालों से देख लेते हैं। अब अगर हम कहें सिस्टर नौरीन यहाँ पे ने वो भी रिवाइज करवा दे, अफ़ाल खमसा वाली बात भी। हाँ, वो किसी को जो याद है अफ़ाल खमसा? हाँ जी। जैसे फ़अला के टेबल से ये करें जरा, यफ अलानी था, यफ अलूना, फिर तफ अलानी, तफ अलून और तफ अलीना, यानी कि ये जो 5 हैं इनके नून गिर जाएंगे, और जो दूसरे 2 नून नस्वा हैं वो नहीं गिरेंगे, इनके जमा वाले। माशा अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तफ़अलीना, और एक मैंने कौन सा मिस कर दिया, तफ़अलूना, वो यहाँ पे आएगा, इसके साथ आएगा। और नाम याद रखना है, ठीक है, नाम नहीं आपने इनका भूलना। ये क्या है, ये इफ़आले खमसा है। अभी हमने अस्माए खमसा पढ़ने, मफाइले खमसा पढ़ने, तो अपने हवासे खमसा को जगा के रखना है, ठीक है। ये इफ़आले खमसा है, यानी कि फेल के जो सीगे हैं उनके बारे में बात हो रही है। अब ये जो नून गिरता है इन सब का गिर जाएगा, किसका नहीं गिरेगा, नून निस्वा जो जमा वाला है, ठीक है। इसको मैंने पहले कहा था कि निस्वा नूने निस्वा का लेकिन नहीं गिरता, लेकिन फिर तो तफलीना का नून गिर जाता है ना, उसमें फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। तो कौन सा नहीं गिरेगा, जो जमा वाला है। कहते हैं कि औरतें ज्यादा हो जाएं, औरतें 2 से ज्यादा हो जाएं तो हराना मुश्किल है, इसीलिए ये जो जमा वाला नून है ये नहीं गिरेगा, ठीक है। ये दोनों जगह पर अपनी इसी हालत में मौजूद रहेगा। ये तो एक बात होगी याद रखने के लिए, और अगर गिराएंगे ना तो आप फिर इसको अलग कर नहीं पाएंगे। ये नून गिर गया तो ये मुजक्कर की तरह से हो जाएगा, उन सीखों के जैसे तफआलू जैसा हो जाएगा, जैसे तफअला बनाया उसको। तो ये नून ना गिराने की एक वजह ये भी है कि इससे पहचान भी आ जाती है कि ये मुअन्नस है, ठीक हो गया। अच्छा जी, और इसमें कोई चीज रह गई हो, ये हो गए हमारे अफ़आल जिसके बारे में हमने देख लिया, लम लम्मा। अच्छा, इन मनमा, अब अगर हमने देखा था कि अगर एक हमारे पास आयत मुबारका आ गई तो एक का जो असर है दूसरे पर भी आ जाता है, फेल पर, फेल मुदारे में। उसमें आप बताएं फिर हम उसकी क्या वजह कहते हैं कि क्यों ये ऐसे हुआ है। तो शर्तिया थे ना, शर्तिया शर्तिया जुमले। होता है, और उसमें ये कि डबल छुरी वाले हरूफ हम उनको कहते हैं, ठीक है। ये जो जैसे हमने कहा था, इन यफ़अल यक्सिब, इसको लिख लें यहाँ पे। एक मैं और भी लिखना चाह रही थी इसमें फिर आपसे, इन यफ़अल यक्सिब अजरन। अब ये जो है, ये छुरी जो चली है इसने यक्सिब भी कर दिया है, दोनों मुदारे हैं, ठीक हो गया। हमारा पेन कहाँ गया, ये दोनों मुदारे हैं, इनने क्या किया है, छुरी का असर दोनों पर। इसको हम कौन से वाले कहते हैं, डबल छुरी वाले, ठीक है। इसके लिए आप अपना जो पेज नंबर 75 है इसका पूरे के साथ साथ तर्जुमे के साथ इसको कर लें। जैसे इसमें ला के साथ भी है, लम लम्मा के साथ है, इन मन मा के साथ, फल वल, ये सारा जो बताया है ना, इसको अच्छी तरह से आपने एक दफा इस तरह देख लें कि इनकी मिसालों को भी देखिए कि इनकी मिसालों में जो थोड़ी थोड़ी सी तब्दीली आई है वो क्या है। और ये जो ली है अमर वाला, ये या तो वाव के साथ आता है या ये फा के साथ आता है, क्योंकि नून गिरता है, जब नून गिरेगा तो हमें पता नहीं चलेगा ये जज़म वाले का गिरा या फिर ये मंसूब वाले का गिरा। उसके लिए बहुत ज्यादा जो हेल्प करेगी चीज वो होगा तर्जमा, कॉन्टेक्स्ट बताएगा कि ये बात किस हवाले से की जा रही है, माजी वाली बात है या मुस्तकबिल वाली बात है, या इसमें कुछ उम्मीद है या इसमें कुछ हुक्म है, या इसमें किसी को किसी चीज के बारे में मशवरा दिया जा रहा है। तो ये जो चीजें ये हमें कैसे पता चलती हैं, हमें तर्जुमे से पता चलती हैं। जो चीजें जैसे इसके ली के अलावा बाकी जो अल्फाज है वो हमें अल्फाज से ही समझ आ जाएगा, सिर्फ ली का जो थोड़ा सा पहचानना मुश्किल है उसको हम इस तरह से पहचान लेंगे। एक मैंने मिसाल ढूंढी थी, क्योंकि कुरान पाक में तो माशाल्लाह से बहुत सारी मिसालें इस तरह की मिलेंगी, और अगर इस तरह की कोई मिसाल आपको आ जाए आपके एग्जाम में दे दी जाए, पहचान लेंगे ना जी जी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी।
डरना नहीं है, ठीक है। एक बस मैंने मिसाल एक इधर लिखी थी तो मैं आपसे पूछ लूं और इंशाल्लाह आप कर लेंगे। अच्छा जी, हम इसको लिखते हैं, न्यू पेज पे लिख लेते हैं। बिल्कुल अटेंटिव हो जाए। अच्छा जी, सबसे पहले तो हमने पहचानना है कि इसमें से अफ़आल कौन से हैं। जी बताते जाए। ये ये फिल है, ये तंसुरूना, है। तंसुरूना से तंसुरू और यंसुरू से यंसुरुहु यंसुर। अच्छा जी, इनका माना हमें याद है, हमने इंशाल्लाह से माना याद किया हुआ है। अच्छा जी, अब अगर ये हमें पता चल रहा है कि तंसुरू है, इन पीछे आया हुआ है, और हमारा ये शर्त वाला आ रहा है कि अगर तुम सब की मदद करे अल्लाह, यंसुरकुम, ठीक है। अब यंसुर जो है इसको तो हम पहचान रहे हैं कि ये यहाँ पर जज़म है, यहाँ पर जज़म नहीं है, नून गिरा हुआ है। तो किस चीज ने आपको बताया कि ये वाला जो है ये मजजूम है, ये तंसुरू मजजूम है। किस चीज से हम आइडिया लगाएंगे? इन 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 मन मा, हम अपने जहन में इसको लाएंगे, इन मन मा ली फल वल, ठीक हो गया। अब ये भी यंसुरू है, अब इसका भी नून गिरा हुआ है, जी लन अब हथौड़ा। लन बताएगा, ठीक है। इसमें इस अगर पे जज़म अल्लाह तुम शद भी सबकी मदद, जी इस पे शद भी हो जाएगी ना, शद, लई यस। ये शद, ये जो शद आती है ना, ये क्यों आती है? ये तजवीद का रूल है, जोड़ने इदगाम हो के लिए जाता ना। है, ठीक है। ये हाँ जोड़ने जी, के लिए इदगाम की, इसको कहते हैं ना कि ये इसको इसके साथ पे लन यंसुरु, बदगम हो जाता लन है। यंसुरु। हाँ जी। सिस्टर नोरीना, आपकी आवाज बंद है। आपकी आवाज आनी बंद हो गई, माइक तो आपका आई थिंक ओपन ही है। एक मिनट, एक आ गई थी, हाँ जी, आ गई है, आ गई है। बोलें आ कुछ? गई है। आ गई है बस। वो कॉल एक आ गई थी, मैंने कॉल ड्रॉप की है, तो मेरे ख्याल से उसने थोड़ा सा ठीक टाइम है। लिया, ठीक है। अब ये जो चीज है ना, इसको हमने ऐसे समझना है कि इनके हम माना पे, तर्जुमे पे भी गौर करेंगे। जो हमारा वाहिद वाला होगा उसको पहचानना आसान है, जमा वाले को थोड़ा सा पहचानना मुश्किल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। उसमें हम वाहिद पे चले जाएं, उसके तर्जुमे पे चले जाएं, तो उसको भी हम इंशाल्लाह पहचान लेंगे। उसमें सिर्फ ली वाला जो एक है उसको थोड़ा सा पहचानना मुश्किल है, वो भी ज्यादा नहीं, ठीक हो गया। इसके साथ हमने एक और भी किया हुआ है ना, वो हमने किया हुआ है, शुरू में आ जाता है, जैसे हम कल पढ़ रहे थे लतजिदन्ना, ठीक है। वो है लायफ़अलन्ना, नून सकीला यहाँ वाला। पर क्या है, जरूर बिल जरूर वाला माना आता है। दो ताकीदें हैं, पहली ताकीद ला ने लगा दी, दूसरी ताकीद नूने सकीला, इसको नूने सकीला कहते हैं, ठीक है। ये इसका नाम है। अभी आप ना भी याद करेंगे तो कोई मसला नहीं, लेकिन जब आप आगे अपनी अगली क्लासेस में लेवल में सुनते हैं ना, फिर एकदम से चौंकने से बेहतर है कि थोड़ा थोड़ा हमें पता हो कि ये वाले अल्फाज जो ये वाली टर्म चूज की जाती हैं, क्योंकि ग्रामर की बुक्स बताया में हुआ इसी है। तरह से लिखा होता है कि थोड़ा थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। अब यहाँ पर अ, क्या है, वो सिंपल सा इसको एक रूल है। नून मुशद्दद भी कहते हैं इसको। हाँ है, मुशद्दद तो है, बिल्कुल मुशद्दद तो है। मुशद्दद किसको कहते हैं? जिसके ऊपर तशदीद हो, ठीक है। मुसक्कल हुआ हुआ है, ये भारी है, मैं बताऊं? क्योंकि एक होगा तो खाली होगा ना, ये मुसक्कल है, ये वजनी है।
لام इसमें ताकीद सिर्फ बनून आपके सकीला बोलते हैं इसको सिस्टर, जी, लाम और ताकीद इसमें आपने बनून कौन सकीला। बनूने सकीला, ये मुश्किल मुश्किल वाली जो होती है ना, इसको थोड़ा थोड़ा सा हजम करना सीखते हैं, अब थोड़ा थोड़ा जज्ब किया करें अपने अंदर। अच्छा जी, इसमें क्या है जो हमारा यफआलूना और तफआलूना, सिर्फ ये पेश ले लेगा, बाकी जितने हैं सारे वो जबर के साथ आ जाएंगे। इसका टेबल थोड़ा सा अलग है, कोई एक सिस्टर इसका टेबल पढ़ ले। ला यफअलन्ना वाला यहाँ से शुरू करें। लयफ़अलन्ना लयफ़अलुन्ना लतफ़अलन्ना लअफ़अलन्ना लतफ़अलुन्ना लनफ़अलन्ना। ला नफअलन्ना, ये जो अपनी तरफ वाला है ना, है तो जमा का, लेकिन इसमें हम जैसे अपने जो असली हालत वाले उसमें भी सिस्टर आवाज नहीं आ रही। चली गई सिस्टर ना आई। मुझे किसने म्यूट किया, ये किसकी शरारत है? नहीं नहीं, म्यूट नहीं किया, अच्छा, मुझे ऐसी लगा आवाज कॉल। नहीं जी। चली। चले ठीक है। हाँ जी, इसको ना एक छोटी सी इस तरह से बना लें अपने पास। हम कहते हैं यफआलू तफआलू, और एक तफआलू कौन सा होता है? एक मुजक्कर अंता वाला, और एक कौन सा है? हिया। पिया वाला। ठीक है, और एक इसमें नफआलू भी आ जाएगा। ये कितने हो गए? 5। अच्छा जी, अब तस्निया वाले यफअलानी तफअलानी तफअलानी तफअलानी, और 2 हमारे पास हैं यफअलूना और तफअलूना। गिन के देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कौन सा रह गया? तफअलीना। इतने ही सीखे होते ना हमारे पास। किसी भी फेल को आपने बनाना हो, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, ये सारी चीजें ऐसे बना के रख लें, उसके बाद आप फिट कर लें आपने जिस तरह से बनाना है। आपको शुरू में जो गायब वाला मुजक्कर वाला लिखें, फिर उसके बाद चाहे मुअन्नस वाला लिखें, फिर सामने वाला लिख लें मुजक्कर का, फिर मुअन्नस वाला लिख लें, ये सिर्फ इतने से सीखे होते हैं। क्योंकि इसमें जो अफालू नफालू ये 2 बार आ जाता है ना, जो मुअन्नस के लिए भी वही अफालू नफालू होना है। वैसे ये 12 है, लेकिन जब हम पूरा एक बना लेते हैं तो ये 14 सीखे बन जाते हैं। इसमें आप याद रख लें कि जो 5 हैं वो जो है लाम उसमें पूरी आ जाती है, यानी कि वो पूरा यफालू की तरह, यफालू तफालू तफालू अफालू नफालू। और फिर तस्निया वाले पे आते हैं तो यफअलानी एक है, फिर तफअलानी तफअलानी तफअलानी, फिर 2 हमारे पास सीखे हैं यफालूना तफअलूना, और एक सीखा हमारे पास है तफअलीना का। ये जिसको इस तरह से याद रह जाए ऐसे ही याद रख लें। अगर अपना वो वाला तरीका है, जैसे हम कहते हैं यफालू यफालूना तफअलू अफअलू नफअलू, और सॉरी तफअलूना नफअलू, वैसे ही हम जब उसमें ऐड करते हैं अपना तस्निया तो थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। तो उस गड़बड़ से लिखने के लिए ये बड़ा आसान है, लिख लें, उसकी प्रैक्टिस कर लें, सुनाना भी आसान हो जाएगा। ठीक हो गया। ये सिर्फ एक अलहदा से आपको कोर्स से अलग एक छोटी सी वो है टिप है। अब क्या करना है, अब ये जो हम देख रहे थे यफआलू है, तफआलू तफआलू अफआलू, इन सब पे ला यफअलन्ना में जबर आनी है। ठीक हो गया। यफअलूना पे क्या आ जाएगी? पेश आ जाएगी। तस्निया को अभी छोड़ दें, तस्निया इसका कुरान मजीद में जहां कहीं यूज हुआ होगा तो उसको देख लेंगे, क्योंकि अभी तक जहां तक हमने पढ़ा, हमने अभी तक इसका तस्निया का कोई सीगा नहीं पढ़ा, तो उस पे हम ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। एक और अहम चीज जो थी इसमें से, अच्छा जी, ये था फल तफ अल, जो हम कहते हैं ना फल तफ अल, उसका वही है, उसको यूज किया जाता फफ अल। अगर आपको मैंने पहले ये आपकी बुक में नहीं लिखवाया तो लिख लें, अपनी बुक का पेज नंबर 73 खोलें, उसमें आपके पास फल यफ अल वाला जो एक छोटा सा टेबल बना हुआ है, फल यफ आलू जो है ना, फल तफ अल, इसको अमूमन कुरान मजीद में फफ अल और फफ आलू उसमें ता भी गिरा दी जाती है, क्योंकि ये सामने वाले को हुक्म देना है ना, तो उसमें फिर वो सामने वाले को हुक्म, जैसे हम इफ अल कहते हैं उसी तरह से फफ अल कह दिया जाता है। ठीक हो गया, इसको एक लिख लें। इसके बाद हमने किया है थोड़ा सा नहव। नहव में हमने क्या सीखा है? हमने अपना
جملہ اسمیہ بنانا سیکھا ہے. اچھا جی، یہاں تک اگر کسی کا کوئی کوشچن ہے تو کر لیں، نہیں تو پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. تھوڑا سا ہم جملہ اسمیہ کو بھی دیکھ لیتے ہیں. سسٹر نورین، اگر فف جی، ال لکھا ہوگا تو اس کا ترجمہ پھر ہم تو یہ بھی کر سکتے ہیں نا، پس تو کر، یعنی کہ وہ حکم والا. پس تو کر، حکم ہی ہے، ہاں. حکم ہی دینا، لام امر ہے. پس تو کر. یعنی کہ دونوں ترجمے اگر ہوں، پس تو کر یا پس تجھے کرنا ہاں، چاہیے، دونوں والے پھر ہو جائیں نہیں گے. تجھے، نہیں تجھے کرنا چاہیے ہم کس کو کہتے ہیں؟ وہ سامنے کرنا والے کو نا. چاہیے والا جو ہوتا ہے نا، سامنے والے کو نہیں، وہ ہمیں ضرورت پڑتی ہے. یہ جب ہم اس کو اپلائی کرنا شروع کریں گے نا، یہ ہمیں سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا. کس کو کہنا پڑتا ہے؟ جو سامنے موجود نہ ہو. ہم کسی کے بارے میں بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ پڑھا کریں، انہیں چاہیے کہ وہ اپنی ورک بک کمپلیٹ کر لیں. ٹھیک ہے، آپ نہیں سے نہیں، میں نے آپ کہنا نے بھی کہ یہ آپ کو جو، سیدھا کہوں. جی آپ نے بھی فل تف ال کا بتایا نا، فل تف ال سے فف ال بھی کہہ سکتے ہیں. تو اس لیے ہاں میں نے جی، کہا جب یہ ففعل بھی فف کہتے ال ہیں. ہو ہاں، سکتا ہے تو پھر ترجمہ تو اس کا یہی ہوگا نا، پس تجھے یا پس آپ کو پس تو کرنا کر، چاہیے. نہیں پس تو کر، یہ ہم امر والا کہیں گے، پس تو کر. ٹھیک ہے، اچھا تجھے اچھا. چاہیے کیا جا سکتا ہے، یہ فعل امر ہے، وہی امر ہے جو ہم یوز کرتے ہیں ہوں. نا. بس آپ کو ٹھیک. کرنا چاہیے. آپ اس کو کسی کو جب حکم دیتے ہیں تو اس میں پھر عموماً آپ چاہیے لگاتے نہیں ہیں. تو جیسے ہم اس کو ہوں. کر لیں گے فعل، مختصر کر لیں گے، ہم اپنا اردو والے ترجمے کو بھی مختصر کر لیں گے. ٹھیک. ٹھیک ہو گیا؟ الحمدللہ. اچھا جی، ہم نے سسٹر کیا ایک ہے بات، جملہ اگر، شرطیہ جملہ جو ان کے ساتھ آتا ہے، سسٹر ایک کوشچن جی ہے، شرطیہ جملہ جب ان کے ساتھ آتا ہے تو اس کا ترجمہ پریزنٹ میں کرتے ہیں یا فیوچر میں کرتے ہیں؟ آپ دونوں طرح سے کر سکتے ہیں. اگر آپ کریں گے تو میں بھی کروں گا. اگر آپ ہمارے گھر آئیں گے تو ہم بھی آپ کے گھر آ جائیں گے. آ جائیں آپ کے گھر؟ جی ضرور. ٹھیک ہے، سامنے بٹھا کے کوئز لیں آپ سے. موسٹ ویلکم. الحمدللہ، جزاک اللہ خیرہ. ٹھیک ہے، اس میں آپ دو، اگر اس میں ترجمہ ہمیں نا جو عربی کا فریز ہے اس کی سمجھ آنی چاہیے. اگر آپ محنت کرتے ہیں تو کامیاب ہو جائیں گے. ہمیں پتہ چل رہا ہے اردو میں کیا، ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اب یہ جو پریزنٹ والا ترجمہ ہم نے کہاں کرنا ہے اور ہم نے فیوچر والا کہاں کرنا ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی، قرآن کی اتنی سمجھ عطا فرمائے کہ انشاءاللہ ہم اسی طرح سے عربی کا فریز دیکھیں اور اردو کی طرح اس کو سمجھیں. ابھی چونکہ ہم سمجھنا ہم نے اس کو شروع کیا ہے تو ہمیں تھوڑا سا یہ ہوتا ہے. اور بعض جب میں تھی QC4 میں نے جو پہلا کوشچن کیا تھا وہ یہ کیا تھا، ہم یہی پڑھ رہے کہ آپ کریں گے تو میں کروں گا، آپ کھائیں گے تو میں کھاؤں گا، آپ ماریں گے. تو میں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ کھائیں گے تو وہ بھی کھائیں گے، کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا. تو وہ پھر ہاں جی بتایا گیا کہ ہاں جی یہ اس طرح سے بھی کیا جا سکتا ہے، صرف سمجھانے کے لیے کہ یہ جو ڈائلاگ ہے یہ جلدی سمجھ میں آ جاتا ہے. ایسا بھی ہم نے پڑھا، یہ ابھی اپنے کورس میں ہی دیکھا ہے کہ ایک جو پہلا والا ہوگا وہ مضارع میں آئے گا، دوسرا والا ماضی میں ہوگا، یا پہلا والا ماضی میں آ جائے گا، دوسرا والا مضارع میں. تو یہ تھوڑی تھوڑی تبدیلیاں آ جایا کرتی ہیں. اس کو انشاءاللہ ہم جیسے جیسے آگے بڑھتے جائیں گے، ہم نے کون سا کوئی بہت زیادہ عربی تو وہ والی اس کورس سے تو نہیں سیکھنی کہ ہمیں وہ جو بولنے والی عربی ہے جی، ہم نے کون سی سیکھنی یہاں سے؟ قرآن کی عربی. کیونکہ بہت سارے الفاظ جو ویسے لینگویج میں یوز کیے جاتے ہیں وہ قرآن مجید میں موجود نہیں ہے. تو اب ہم آ جاتے ہیں اپنے جملہ اسمیہ پر. اچھا جی، میں ایک جملہ لکھتی ہوں، سسٹر کو بہت پسند ہے مارنا، سسٹر حفصہ کو. تو اب ہم مارنے والا ہی جملہ بنا لیتے ہیں. اور ایک جملہ میں لکھتی ہوں، حامد ناصر. اب اس جملے کے بارے میں آپ سے پوچھوں کہ یہ کون سا جملہ ہے؟ ہمارے پاس جملے کی دو اقسام ہیں، اسم والا اسمیہ جملہ، جبکہ فعل سے شروع ہونے والا جملہ فعلیہ جملہ. یہ تو فیلئر اب جملہ یہ کون سا پہلا والا؟ پہلا فعلیہ جملہ ہے اور دوسرا جملہ کون سا ہے؟ اسمیہ. 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 اچھا جی، اس میں اب آپ نے ناصر، آپ کسی لڑکے کا نام نہ لیں، آپ اس کو سمجھیں کہ یہ وہ والا ہم نے یوز کیا ہے، حامد مدد کرنے والا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ ہم یہ بھی کہ اور اوپر یہ والے کی اگر دارابا والی سسٹر
एग्जाम्पल लें तो हम कहेंगे हामिदुन दारिबुन। ने मारा, हाँ जी, अगर हम उसको इस तरह से बनाना चाहें, हामिदुन द्वारिबुन, उसको हामिद इसमिया करें। मारने वाला है। और जबकि फेल या जुमले में कौन क्या, इसका तर्जुमा बिल्कुल अलग हो जाता है, वो क्या है, हामिद ने मारा। ठीक है, अब ये जो हमारा है ना इसमिया जुमला, अभी फेल या जुमला हमने QC 5 में इंशाल्लाह पढ़ना है, उसमें फिर हम देख लेंगे कि ये जो द्वाराबा के साथ हम जो शुरू में QC 1 में सीखा था, क्या अब हामिदन आ गया तो इसका क्या करना है। और एक दो क्वेश्चन जैसे ग्रुप में भी किसी ने पूछे थे कि हमें ये तो जो अस्मा है वो नजर आ रहे हैं जमा में, जबकि फेल जो है वाहिद है। फेल के बारे में सारा हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह QC 5 में। अभी हम चूंकि QC 4 के एंड पे सीख रहे हैं, नहव हमने शुरू किया है पढ़ना, तो अब हम इसको कर लेंगे। इस तरह से हमने कहा था कि कुछ थोड़ी सी शराइत हैं जिनकी वजह से हम इनको इसमिया जुमले को पहचान पाएंगे। अगर किसी को याद है जरा फटाफट मुझे बता दें कि इसमिया जुमले के 2 हिस्से होंगे। मुब्तदा और खबर। खबर पहला मुब्तदा, पहला मुब्तदा और दूसरा दूसरा खबर। खबर। और मुब्तदा के बारे में और एक और चीज है कि दोनों रफा की हालत में होंगे। रफा की हालत कौन सी है, पेश वाली। पेश या दो वो पेश। पेश हो या दो पेश हो। ठीक है, अच्छा जी। अब मुब्तदा ज्यादातर किस तरह से नजर आएगा हमें, एक पेश मारिफा। मारफा अल आरिफा, अरफा। आरिफा बिल्लाम। ठीक है, इसको हम इस तरह से कहते हैं, हमें अल नजर आएगा। और खबर अमूमन, इसमें हमने अमूमन कहना है। जहां पर हमें खबर खास नजर आ गई, मारफा नजर आ गई, तो फिर कोई ना कोई हमें वजह ढूंढ के लानी पड़ेगी। ठीक है, खबर अमूमन नकीरा होगी। ठीक हो गया। इसकी मिसाल हमने पढ़ी थी, अल बैतु जदीदुन। और इसमें अगर हमारा बैत मुजक्कर है तो हमारी खबर भी मुजक्कर है। अगर ये जो हमारा, अब यहाँ पे हम मुस्लिम अल मुस्लिमु लिख लेते हैं क्योंकि वो उस पे कायदा टूट जाता है। अल मुस्लिमु स्वालिहुन। ठीक है, अब यहाँ पर ये है कि अगर मुस्लिमूना हो, जमा हो, तो फिर हम क्या कहते हैं, स्वालिहूना। जबकि एक कायदा जो हमने जमा मुकस्सर में पढ़ा है कि अगर हमारे पास गैर आकिल की जमा आ जाए, अब जैसे हम यहाँ कह रहे हैं अल बुयूतु चूंकि गैर आकिल की जमा मुकस्सर आ गई, यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने जो जदीदातुन। खबर लानी है जदीदातुन। ठीक है, जबकि इसके बरअक्स अगर हमारे पास मुअन्नस आ जाती है अल मुस्लिमातुन, तो इसको हम क्या कहेंगे, स्वालिहातुन। ठीक हो गया जी। ये एक तरह का जुमला इसमें हम सीख रहे हैं, मजीद भी सीखेंगे। अभी इस वाले को अच्छी तरह से समझ लें ताकि ये वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। इसम के 2 हिस्से हैं, पहला मुब्तदा, दूसरा हमारा खबर होगा, और दोनों रफा की हालत में होंगे। मुब्तदा ज्यादातर हमें नजर आएगा अल के साथ, एक पेश के साथ, जबकि खबर अमूमन हमें नकीरा नजर आएगी तनवीन के साथ। और अगर हम बात करते हैं रसूलुन, अब रसूलुन को हम अल नहीं लगाएंगे, उसके बावजूद इसको हम क्या कहेंगे कि ये मारफा ही है। ठीक है, मारफा ही है, रसूलुन मुहम्मदुन। ठीक हो गया। अब जब हम इसकी मुअन्नस की जमा बनाएंगे तो मुअन्नस की जमा में भी अल मुस्लिमातु स्वालिहातु। ठीक है, अब आपने वो वाली यानून वाली और जेर वाली, ये वाली जमा यहाँ नहीं लेके आनी। ठीक है, क्योंकि हमने कहा है कि जब हम रफा वाली हालत कहते हैं तो रफा वाली हालत में पेश को जब हम बदलते हैं तो वाव नून से बदलते हैं,
जबकि मुस्लिमातुन को जब हम मुस्लिमातु करते हैं तो हम उसके ऊपर भी जो हरकत है वो पेश वाली देते हैं। जबकि मुस्लिमातिन मुस्लिमातन में हम क्या कर देते हैं, हम ता के नीचे जेर लगा देते हैं। जैसे मुस्लिमुन होगा तो मुस्लिमूना, और अगर हम इसको इसी तरह से मुस्लिमन और मुस्लिमिन देखें तो वो यानुन वाली जमा आएगी। तो चूंकि ये जुमला इस्मिया है, हमने बात कर ली कि दोनों चीजें हमारी रफा की हालत में आएंगी। इस इशारे को याद रखिए, इस इशारे को सीख लें, क्योंकि ये इशारा हम अभी आगे अपने QC5 में भी थोड़ी देर यूज करने वाले हैं। जब हमें समझ आ जाएगी फिर इन इशारों को ना भी करें। जैसे अब हम पढ़ते हैं फाला फालू फालता फालतू, तो अब हम चाहे इशारे ना भी करें, हमारे जहन में ये इशारे खुद ब खुद चले रहे होते हैं। तो ये जो रफा रफा बुलंदी को कहते हैं, अपना हाथ ऊपर उठाएं, रफा यादैन से हमने याद रखा था, हमने दोनों हाथ बुलंद किए। ठीक है, रफा की हालत कौन सी है? रफा की हालत ये जो हमने ऊपर जो इशारा किया, ठीक हो गया। और ये जो जुमला इस्मिया बनाना है, इसमें आपने खास तौर पर इस बात का ख्याल रखना है, अगर आपको अगला जो लफ्ज है किसी और हालत में नजर आ रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह नजर आएगी। हो सकता है खबर वो भी बन जाए, लेकिन उसमें फिर आपको कुछ थोड़ी बहुत और तब्दीली लाना पड़ेगी। अब यहाँ पर ऐसा कर लेते हैं, थोड़ी सी हम कर लेते हैं इसकी प्रैक्टिस, थोड़े से जुमले देख लेते हैं। या जैसे मैंने वो उसमें डाला था, हम कहते हैं चाय को कहते हैं शायुन और गरम को कहते हैं हारुन। तो अब इसको अगर आप बनाएं जुमला, इसमें आप, वैसे मैं कह रही हूँ गरम चाय, अब मैंने जुमला बोलना है कि चाय गरम है। अब जैसे बैतुन जदीदुन होगा तो ना उसको हम सिर्फ ये कह देंगे नया घर, घर नया है वाला तर्जुमा हम नहीं ला सकते। कुछ ना कुछ वो भी बन जाता है, कवायद के हिसाब से कुछ ना कुछ बन जाएगा, लेकिन जब हम अल लगाते हैं, इसकी जो रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं, तो हमारा जो है वाला तर्जुमा वो इसमें से निकल के आ जाता है। अच्छा जी, इसमें जो बुक में है उसी को फिर देख लेते हैं थोड़ी सी। अच्छा जी, इसमें मेरे पास है अल मुनाफिकु फासिकुन। इसकी जरा पहले जमा बना के देखें, अल मुनाफिकु फासिकुन, कोशिश करें जरा। अल मुनाफिकूना अल मुनाफिकूना फासिकूना। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो जमा है ना, जमा में क्या गलती लगती है, क्या थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, यहाँ पर हमें तनवीन नहीं नजर आ रही होती ना, तो इसको थोड़ा सा अपने जहन में ऐसे जब आपको आ जाए, जैसे अब लिखा हुआ है अल मुनाफिकुना फासिकुना, आपको कहा जाता है इसको मुजक्कर में कन्वर्ट करें, तो क्या करना है, इसके वाहिद वाहिद पर कैसे जाना है, अल लगाते हुए ही अल मुनाफिक कहेंगे ना, अल मुनाफिकु, तो फिर फासिकुना से फासिकुन खुद ब खुद जहन में आएगा कि उसके ऊपर अल नहीं लगा हुआ। जब अल नहीं लगा हुआ तो इसके ऊपर यकीनन तनवीन आएगी। ठीक है क्या? और इसी को अगर मैं कहूँ कि आप इसकी मुअन्नस बना लें, अल मुनाफिकु फासिकुन, अल मुनाफिकातु फासिका- फासिकात फासिकातुन। अच्छा जी, एक ना आपके इसी में थी जो जमा मुकस्सर के साथ एक सूरह मुबारका की कुछ आयात थी, वुजूहुन वाली, ये मुझे मिल गई। अच्छा जी, इसमें देखिए वमन अज़लमु मिम्मन मनअ मसाजिदल्लाहि अन यज़कुरा। अच्छा, अन यज़कुरा देखें, यहाँ पर भी आप पेज नंबर 51 पे आ जाए अगर आपके पास बुक मौजूद है। इसमें आप देखें अन यज़कुरा, अब अन है तो हमने मंसूब भी देख लिया, इसके साथ साथ आप आगे आए तो आपको खराबिहा में जो हमारे हमने आज मुअन्नस के सीगे पढ़े हैं उनका जमायर वो भी मिल गया जो अटैच होके आया। इसके बाद बात शुरू हो रही है वुजूहुन से। वुजूहुन क्या है? वजहुन की जमा है, जमा मुकस्सर है। अब जमा मुकस्सर के कायदे के तहत खौशियतुन, नासिबतुन और तस्ला और तुस्का, ये सारी के सारे मुअन्नस हैं। जबकि हामियतुन और आनियतुन ये क्यों मुअन्नस है, इसको आप हाईलाइट कर लीजिए कि इनके पीछे मुअन्नस आ रही है, वो कौन सी है? वो है नारन और आइनिन। ठीक है, आइनिन, आइनिन जो जिस्म के हिस्से जो जोड़े जोड़े होते हैं ना, उनको हम मुअन्नस कंसीडर करते हैं।
اچھا تو یہ سسٹر یہ جو نار رن آیا ہے ویسے تو نارون ہوتا ہے نا، تو یہ اس کی وجہ سے آیا ہے مونس کی وجہ سے؟ کدھر لکھا ہوا ہے نارن؟ مجھے تو نظر ہی نہیں آ رہا. یہ آپ نے اینڈ والی بک لائن میں میں. پیج 51 میں لاسٹ میں لاسٹ لاسٹ سسٹر والی آئی جو نا آپ کی آواز ہاں نہیں آ رہی. جی مجھے میں نظر نہیں آ دروازہ رہا. کھولنے گئی. ہاں جی میں بتاتی اوکے گئی تھی کہ میں دروازہ. ہاں جی مجھے اوکے. بتائیں میں نے کہاں سے پوچھا آپ تھا کہہ رہے ہیں؟ سسٹر، میں نے پوچھا تھا یہ ہے نا تسلا نارن حامیتن، ویسے تو نارون ہوتا ہے نا، تو یہ نارن ادھر اس کی کیا وجہ آئی ہے؟ آپ اس کو سمپل سا سمجھیں. آپ سمجھیں دورابا ہر جگہ پہ مارنے مرانے کی بات آتی ہے نا تو ہمیں ذرا جلدی سمجھ آ جاتی ہے. ترجمہ کریں. ہاں جی دارابا حامیدن، ٹھیک ہے. حامد کو اس کا مارا. ترجمہ کریں. حامد نے مارا. حامد کو مارا. کس نے مارا؟ اس اس نے. نے. اس نے مارا. اب تسلا کے بعد تسلا ہمارا کیا ہے؟ یہ ہمارا فعل ہے. اب نارن اس کا ترجمہ بن جائے گا تسلا نارن اس کا حامیتن. نارن کہاں تسلا کا لکھا ہوا ہے؟ مطلب کیا مجھے ہے؟ نظر نہیں آ رہا. یہ لاسٹ لائن ہے 51 پیج پہ، لاسٹ لائن کا پہلا ورڈ ہے تسلا نارن، 51 ایک منٹ پیج. میں اس کا ترجمہ میں مجھے آپ کو لگتا ہے صحیح یہ صحیح تھا کہ دیکھ کر آگ میں کرتی ہوں. ڈالے جائیں گے نا. آگ تو نہیں نا ان کو ڈالے گی تو وہ آگ میں ڈالے جائیں گے. ایک منٹ اس اچھا کا نا صرف مجھے اس کا پورا یہ ہے سورہ غاشیہ ہے شاید. اس کے اوپر لکھا ہوا یہ کون سی سورہ ہے؟ میرا ایک اس پہ یہ سورۃ غاشیہ ہے. غاشیہ ہی ہے نا. اس کو ہاں بھی جی دیکھیں ہاں ایک منٹ جی. میں آپ کو تسلا کا میرے پتا ذہن تھا نکل کہ گیا اس میں ترجمہ. ہاں جی اچھا داخل ہوں گے. میں کچھ کہتے ہیں تسلا داخل ہوں گی. اس کے بعد ہے آگ میں دہکتی ہوئی. آگ میں داخل. آپ اس کو اس طرح سے دیکھیں کہ وجوہ وہ چہرے یوم اس دن خاشیت تن ڈرے ہوئے ہوں گے. عاملتن ناصبتن. ٹھیک ہے. عاملتن عمل کرنے والے اور ناصبتن مشقت اٹھانے والے. اور اس کے بعد ہے اگلا. یہ یہاں تک بات ہو رہی چہروں کی. چہروں سے چہرے کس کے ہوتے ہیں؟ لوگوں کے نا. وہ چہرے ڈرے ہوئے ہوں گے. کون سے عمل انہوں نے کیے ہوئے؟ انہوں نے کیے ہوئے آگ میں جانے والے عمل. یہاں تک یہ بات ہوئی ہے کمپلیٹ. اب یہ جو تسلا ہے نا تسلا وجوہن یعنی کہ وہ چہرے داخل ہوں گے. وہ چہرے پلائے جائیں گے. اب ان کے لیے فعل آ گیا ہے ہمارا مؤنث. لیکن یہ جو حامیتن یہ حامیتن ہے نا یہ آگ کی جس کو کہتے ہیں نا صفت میں ابھی کہہ رہی تھی صفت بتائی جا رہی ہے. اس کے بارے میں بتایا جا رہا کہ وہ آگ کیسی ہوگی. وہ آگ ہوگی نارن حامیتن. اچھا جی یہ دہکتی ہوئی آگ ہے. اور تو اس کا من آئین کا ہم نے کہا تھا چشمہ. اور یہ جو پلائے جائیں گے چشموں سے کھولتے ہوئے یہ بھی اسے گرمی کی بات ہی ہے آنن. اب یہ جو ان کا تعلق ہے صرف جو میں بات آپ کو بتانا چاہ رہی وہ یہ ہے کہ وجوہن کی وجہ سے آنیاتن جو ہے یہ اس میں نہیں آیا ہوا مؤنث. اس کی سزا نہیں ہے. وہ جب چہروں کی بات کی جا رہی ہے چہرے ڈرے ہوئے ہوں گے جنہوں نے مشقت اٹھانے والے ایسے عمل کیے وہ داخل کیے جائیں گے اور وہ پلائے جائیں گے. ٹھیک ہو گیا. باقی اس میں اور تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے. سسٹر اس میں بیسیکلی فائل کا نہیں نا پتا ہے اس لیے یہ پیش کے ساتھ تو نہیں نا ہو سکتا. فائل جو ہوتا ہے وہ پیش کے ساتھ آتا ہے. اچھا حامیت ان کو آپ اس کا فائل بنائیں. نہیں وہ ابھی سسٹر ہم آگے نے پوچھ رہی تھی کہ نارن جو ہے نا وہ زبر کے ساتھ کیوں آیا پیش کے ساتھ کیوں نہیں ہے. آپ اس کلیئر کو ہو اس گیا. طرح سے کر لیں. آپ اس کو کہیں تسلا حامیت نارن. پھر یہ کیا بن جائے گا؟ اب ہمیں یہ پیش والا جو ایک نظر آ رہا نا اس کو آپ لے جائیں تسلا میں. ٹھیک ہے. پھر آپ کا نارن جو ہے وہ آپ کا مفعول بھی کیا ہے مفعول بھی انشاءاللہ ضرور پڑھیں گے. ٹھیک ہے.
اس کو کہتے ہیں منہ سے نکل گیا ہے میرے، سوری، ٹھیک ہے. اس کے بارے میں ہم نے پڑھنا ہے انشاءاللہ کہ یہ جو فائل ہے جس کو ہم سبجیکٹ کہتے ہیں، سبجیکٹ آبجیکٹ، یہ آگے پیچھے بھی ہو سکتے ہیں. ابھی ہم سیکھنے کے لیے ترتیب سے پڑھتے جا رہے ہیں. ہم ترتیب سے ایک چیز ہے، ہم نے کہا کہ ضرب حامد زیدن، ٹھیک ہے، ہم اس کو اس طرح سے پڑھتے جا رہے ہیں، جبکہ ہم اس کو اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں ضرب حامدن زیدن. تو یہ جو تھوڑی تھوڑی سی ترکیب بدلتی ہے، یہ سب ہم نے سیکھ لینی ہے انشاءاللہ جب ہم اپنے انشاءاللہ QC5 میں جائیں گے. اور QC6 میں ہم سب کچھ سیکھ چکے ہوں گے. سیکھنے کے بعد ہم کیا کریں گے، ہم ان کو اپلائی کیا کریں گے. پھر ہمیں یہ نہیں اندازہ کرنا پڑے گا کہ یہ جو پیش آئی ہے یہ بعد میں کیوں آ گئی اور زبر والا پہلے کیوں آ گیا. اب یہاں پر اس کو آپ اس طرح سے لکھ کے دیکھ لیں، فاصلہ کے ساتھ نیچے کوئی اپنا جو آپ کو آسان لگتا ہے، چاہے ضربا ہی لکھ لیں، ضربا حامدن، پھر آگے زیدن لکھ لیں. آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ یہ کس طرح سے اس کی ترکیب ہوئی ہے. اب چونکہ یہ جو تسلا ہے اس کے بارے میں پہلے خود بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ انتا والا ہے یا ہیا والا ہے. یہ تھوڑی سی آگے مزید جو کمپلیکیٹڈ سی گرامر ہو جاتی ہے. تو جو سمپل والی پہلے سیکھ لیں، جملہ اسمیہ کو سیکھ لیں. اور ایک بات اور کیا یاد رکھنی ہے، حرف سے کوئی جملہ شروع نہیں ہوتا، کوئی جملہ حرفیہ جملہ نہیں ہوتا. حرف کو چھوڑنا ہے، اس کے بعد آ کے دیکھیں، حرف کے بعد اگر فعل ہو تو فعلیہ جملہ، حرف کے بعد اسم ہو تو اسمیہ جملہ. ٹھیک ہو گیا؟ اور یہاں تک اگر آپ کو کوئی اور بات سمجھنی ہے، پوچھنی ہے تو ضرور پوچھ لیجئے. اور آپ کے پاس جو پیج نمبر 50 پر بہت سی مثالیں ہیں، اس میں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس کو ایک طرف ہاتھ رکھ لیں یا اس کو آپ لکھ لیں. آپ دیکھیں ہاذا بیتن ہے تو آپ اس کو کوشش کریں کہ میں اس کا ذرا مؤنث بنا کے دیکھوں کہ مؤنث اس کی کیسے بنے گی، یا اس کی جمع مکسر، مؤنث تو نہیں بنے گی، اس کی جمع مکسر کو ہم کیسے لا سکتے ہیں. جیسے ہاذا بیتن ہے تو بیتن کی جگہ اگر بیوتن آئے گا تو اس سے پہلے ہم جو اشارہ ہے یا جو صفت ہے یا جو فاعل جو اس کا فعل ہے وہ کیا لائیں گے، وہ مؤنث لائیں گے. تو یہ بڑی اچھی اس میں سے پریکٹس ہو جائے گی. اس میں فعل مضارع بھی ہے، ماضی بھی ہے، اور اس میں ایک آپ کے پاس لکھا ہوا ہے کتبت یدن اور لکھا ہوا کتبت ایدی. اگر آپ کے پاس بھی یہ ایک غلطی ہے تو اس کو ٹھیک کر لیں، کیونکہ یہ تھا کتبہ، ٹھیک ہے، لکھا ان کے ہاتھوں نے، اس کے ہاتھوں نے لکھا. اب یہ جو کتبہ ہے یہ ہمارا مذکر آ جائے گا. جب ہم نے یدن کی جمع بنائی ایدی تو پھر ہمارے پاس آ جائے گا کتبت. ٹھیک ہو گیا؟ باقی یجری سے تجری ہوا ہے، زوجن ازواجن، تو اس کے بعد مطہرتن یہ یوز ہو گیا. چلیے جی، اب یہاں پر آپ مجھے بتا دیں اگر آپ کا کوئی کوشچن ہو، کوئی سمجھ نہ آئی یہ ہو، یا نہیں، جس کو آپ دوبارہ چاہ رہے ہو. سوری، یہ کیا آپ نے کہا ہے کاتبت یدن اور کاتبت ایدی، اس اس میں کو کیا چینج کاتبہ، اس کرنا کو کاتبہ کر لیں، کاتبہ کر لیں، کاتبہ، کاتبت لکھا ہوا دونوں طرف کاتبت ہے؟ کاتبت لکھا ہوا، ایک طرف کاتبہ کر لیں. یہ پرنٹنگ ٹھیک کا ہے، کچھ ہے ایشو. ٹھیک جی ہے. جی ٹھیک. اچھا، یہ جو آپ کے پاس مثالیں آپ کی بکس میں لکھی ہوئی ہیں نا، یہ آپ کی بکس میں پیج نمبر ہے 82. اس میں آپ کو یہ جو جیسے لن تنالوا البر، اب یہ جو تنالو ہے نا، اس کے آگے ایک نون لگا کے اس کو پورا بھی بنا کے دیکھا کریں. اس سے فائدہ یہ ہو جائے گا، یہ اپنے پاس لکھ لیں بکس کے اوپر کہ یہ پہلے یہ تھا، لن نے کیا کیا، اثر ڈالا، اب یہ ہتھوڑا بھی بن گیا اور اس میں نفی والا معنی بھی آ گیا اور یہ مستقبل میں بھی لے گیا. اس سے کیا فائدہ ہو جائے گا، یہ یاد رہ جائیں گی چیزیں. اس کے بعد ایک آپ کا ہے پیج نمبر 83 پر آپ آ جائیں، اگر اس پر عربی بول چال کے نیچے قرآن سے مثال لکھی ہوئی ہے، ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ. اب یہاں پر آپ دیکھیں یقولا، یقولا کیوں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ اس میں چلا گیا ہے، ہتھوڑے میں چلا گیا، یہ اس کی حروف کیا وجہ عطف، ہوئی؟ سما یہ کی حروف وجہ عطف ہے، کنٹینیو سما کر کی رہے وجہ سے. واؤ یہ بھی آپ کانٹینیوٹی کے لیے ہے، سما بھی، اور اسی طرح سے فا بھی. ٹھیک ہے،
फा का अलग से भी असर हो जाएगा, वो कहाँ होगा, वो इंशाल्लाह सूरह बकरा में जब हम QC 6 पे पहुंचेंगे वहां पे हम फा का कुछ मजीद सीखेंगे। लेकिन अभी तक जो आपको QC 5 तक आपने पढ़ना है उसमें कहीं भी फा का अतफ के अलावा या शुरू में जो फिक्रा शुरू किया जाता है उसके अलावा और कोई इसका अमल नहीं नजर आएगा। तो अब हम कहेंगे कि हमें जो अयुतिया नजर आया था वही वाले अन ने असर कर दिया। अब हमने डबल हथौड़ा नहीं कहना, ठीक है, डबल छुरी चलती है। और वैसे भी ये डबल तब होता है अगर बीच में कोई हरफे अतफ ना होता, यानी कि सुम्मा वाव वगैरह ना हो, तो फिर वो डबल डबल काम करता। अभी वो एक है, उसका असर वाव की वजह से जो पहले वाले फेल मुदारे में पड़ा था वही दूसरे पर पड़ गया। इसके अलावा और अगर बुक में से ही मैं आपको कहूँ कुछ करने का, तो अच्छा, बुक में से आपने अपनी अहादीस को भी जरूर याद कर लेना, देख लेना। अच्छा, याद करना उसको हरफ व हरफ अहादीस को जरा मुश्किल होता है। आप क्या किया करें, आप ये जो ऊपर अरबी लिखी हुई है उसके साथ मिला मिला के देख लें। अब लिखा हुआ इन्नल्लाह यरफाउ, अब ये जो यरफाउ है किसको कहते हैं, बुलंदी को कहते हैं। ठीक है, अब इसका तर्जुमा भी देखें, कुछ बुलंदों कुछ कौमों को सॉरी कुछ कौमों को बुलंद फरमाता है। छोटी छोटी चीजों को साथ साथ आप किसी कलर पेंसिल से या किसी तरह से हाईलाइट कर लिया करें कि यरफा, इसका माना ये है किताब का किताब, आपको अंदाजा होता है, कौम अकवाम, ये भी। इसके बाद है याद आऊ, याद आऊ, हमने वादा याद आऊ, ये हमने किया हुआ है फेल QC 2 में। अब ये जो फेल किए हुए थे इनके माना भी याद आ जाते हैं, याद रह भी जाते हैं। उसका फायदा क्या होता है, उसका फायदा ये हो जाता है कि ये अब हम अगर जब पढ़ेंगे हदीस ये वाली, इसमें हमें काफी सारी चीजों के माना आते हुए, तो तर्जुमा हमारे पास लिखा हुआ होता है ना, जब आपके पास पेपर आता है, पेपर में आपने खुद नहीं लिखना होता, वो याद आ जाते हैं अल्फाज मिला मिला के। और आपको अगर मैं इसके दूं टिप कोई याद, इसको अपनी तैयारी करने के लिए, आपने अपने जितने होमवर्क्स किए हुए हैं आप उसको इस तरह से फॉन्ट को बड़ा कर लें, खोलें और जवाब को पहले खुद बोलें, फिर उसके बाद चेक करें अच्छा जो मैंने बोला ठीक है। अपने सारे होमवर्क्स इस तरह से देख लें, क्योंकि दोबारा दोबारा करेंगे तो नहीं, आप उसको देख लें। आपके पास सैंपल क्विज आ जाएगा, आप उसको करें। उसको पहले आपने बिल्कुल उसी तरह से करना जैसे आप क्विज करते हैं, उसका नंबरों का कोई मसला नहीं होता। पहली बार में अगर आपके पूरे नंबर नहीं भी आते कोई मसला ही नहीं है, वो ना नंबर आपके काउंट होंगे ना आपके वो रिजल्ट में अनाउंस होंगे, कुछ भी नहीं होना उसमें, आपकी अपनी वो प्रैक्टिस है। आप खुद करें उसको, उसके बाद अगर आपकी कोई मिस्टेक्स आती हैं आप उन पे गौर करें कि क्यों ये मेरी इसमें से गलती निकली थी, उनके स्क्रीनशॉट ले लिया करें, दोबारा आप खोलेंगे दोबारा वो ब्लैंक आ जाएगा। उसको बार बार करें। आपकी वर्क बुक में जो छोटे छोटे फ्रेज जिनके आपको तर्जमे पूछे जाते हैं उनको जरूर देखा करें। और इसके साथ साथ जो आपकी बुक पे एंड पे अफाल लिखे हुए जो कल हमने अल्हम्दुलिल्लाह से सिस्टर अक्सा के साथ किए भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह से बड़ी अच्छी सी असाइनमेंट्स हम करते हैं सिस्टर अक्सा की। और जिसने नहीं की है वो सिस्टर मनीजे ने, सिस्टर समिया है, और भी कुछ सिस्टर्स करती हैं। आप उनकी जो सॉल्व बल्कि जो चेक है उसको देख लें, उसको पढ़ने करने का तो अभी इतना ज्यादा टाइम भी नहीं है आपके पास, कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। कि अगर आप वो जो इशारे वाले सवालात वो ना भी करें, जो ग्रामर के क्वेश्चन है उनको आप हल कर लें। इसी तरह से जो आपको मिड क्विज की करवाई थी सिस्टर अफसा ने, कुरान पार्ट की रिवीजन, उसको देख लीजिएगा। और क्या कर सकते हैं, और ग्रुप में पूछें सवाल, ताकि आपका सवाल अगर बजाय इसके कि मुझसे पर्सनल में पूछें या सिस्टर अफसा को पूछ सकते हैं, मैं आपको मना नहीं कर रही हूँ। ग्रुप में पूछने से फायदा ये हो जाएगा कि अगर और किसी के जहन में इस तरह की कोई बात नहीं आई थी तो उसको भी समझ में आ जाएगा कि इसको हमने किस तरह सॉल्व करना है। अब आपका अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्विज से मुतालिक बात है तो जरूर बताइए। और क्विज मेरा जो अपना इरादा है वो इंशाल्लाह ट्यूसडे का है, तो आप लोग भी मुझे बता दीजिएगा, ग्रुप में बता दीजिएगा कि आपसे मंडे को ले लिया जाए क्विज या ट्यूसडे को ले लिया जाए। क्योंकि संडे के बाद एक दिन अगर आपको दे दिया जाए, चलें संडे में बहुत सारी हो जाती है मसरूफियात, तो मंडे में आप सारा रिवाइज कर लें तो ट्यूसडे को आप दे दें। अब आप ट्यूसडे ठीक है, चलिए ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, 2 लोगों ने तो अभी मुझे यहाँ पर बता दिया है, बाकी लोग भी बताइएगा कि मेरी अपनी जो थी कि इसमें हम ट्यूसडे को ले लें। ठीक हो गया जी? तो इस तरह से रिकॉर्डिंग्स शेयर कर दीजिएगा। जी हाँ जी, मैंने इसको चार्जिंग पे लगा दी है, मैं अभी आपको जोड़ती हूँ पहले, ठीक है? मैं अभी यूएच से इसको जोड़ना भी है।
اس کا میں جوڑ کے آپ کو بھیجتی ہوں. سسٹر افسا نے اگر نہیں بھیجی تو اکٹھی بھیج دیتے ہیں ہم, ٹھیک ہے؟ وہ قرآن پاک کی بھی آپ کو بھیج دیتے. یہ ریکارڈنگ بھی سن لیجئے گا, اور اس کے ساتھ آپ یوٹیوب پر اگر آپ نے الفلاح کا جو چینل ہے اس کو کیا ہوا ہے سبسکرائب, تو وہاں پر آپ اور ٹیچرز کی بھی دیکھ سکتے ہیں. تو اس سے یہ ہوگا کہ اگر آپ کو کسی بات کی مجھ سے سمجھ نہیں آئی تو ہو سکتا ہے آپ وہاں مجھ سے بہتر کسی اور ٹیچر سے سمجھ لیں. اور میرا خیال ہے کہ اب اس کے بعد ہماری جو ملاقات ہونی ہے, جو اگلی ملاقات, وہ ہماری ہوگی, اگر تو QC5 ہم نے فوراً شروع کرنا ہوا تو ہم ریزلٹ کی سیریمنی اسی دن کر لیں گے, ورنہ ہم ریزلٹ کا ایک کوئی آدھا پونا گھنٹہ کسی سے پہلے کسی دن میں آگے پیچھے کر کے کر لیں گے. تو اس کے بارے میں مجھے ضرور بتائیے گا کتنا آپ کو سپیس چاہیے, کہ ہم اپنا کوئز کرنے کے بعد ریزلٹ کے بعد اگر آپ کو 15 دن چاہیے, 20 دن چاہیے, یا 1 مہینے بعد شروع کریں, تو مجھے آپ نے ضرور یہ بتانا ہے. اس سارے ٹائم میں آپ نے QC کو بالکل بھول نہیں جانا. آپ کیا کر سکتے ہیں اس ٹائم میں, اپنی بکس کھول لیا کریں, دیکھ لیا کریں, قرآن پاک میں اپلائی کیا کریں جتنا آپ نے پڑھا. وہ آپ ضرور مجھ سے بھی پوچھ سکتے ہیں, گروپ میں بھی آپ کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو کس طرح سے دیکھتی ہیں, یا آپ نے کہیں پر دیکھا کہ یہ لم کا اثر ہو رہا ہے, یہ چھری کا اثر ہو گیا, یا میں نے یہ لَيَفْعَلَنَّ والا کوئی لفظ اس کے ملتا جلتا دیکھا. تو یہ ساری چیزیں ضرور آپ گروپ میں ایک دوسرے کے ساتھ, اس سے یہ ہوگا گروپ ہمارا ایکٹیو رہے گا اور ہم ایک دوسرے سے جڑے رہیں گے. تو پھر یہاں پر اجازت لے لی جائے. ماشاءاللہ سے کافی سارا ٹائم آج میں نے آپ لوگوں کا لے لیا ہے. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ لوگ میرے ساتھ بیٹھے, اتنی دیر بنے رہے میرے ساتھ, الحمدللہ. جی تو میرا تو خیال ہے یہ سپٹمبر کے شروع میں QC5 شروع کر لیں, یا اس کے مڈ اینڈ پہ اگست کے. باقی سب کا کیا خیال ہے؟ ہاں, ایک سارے مہینہ انشاءاللہ دے یہ دیں تو 1 month اچھا رہے گا. 1 month چلے جی, کیونکہ مجھے بھی اتنا اندازہ ہے کہ سب کے بچوں کو چھٹیاں اور لوگ ادھر ادھر جا رہے ہوتے ہیں نا. یہ تو ہم نے کرنا تھا, یہ جو QC4 شروع جو کیا ہوا تھا اس کو تو کمپلیٹ کرنا ہی تھا. تو انشاءاللہ اس پہ ہم تھوڑی سی کر لیں گے اسٹریچ, کوئی اس طرح ہم سے نہیں پول ہے, کسی کروا کو لیں, بہت جلدی تو نہیں ہے. پولنگ کروا لیں میم. 15 کو چھٹیاں ختم ہاں ہو وہ رہی ہیں کروا نا, لیتے ہیں, 15 چلیں چلیں ٹھیک ہے. چلیں انشاءاللہ دیکھ لیتے ہیں. تو پھر یہاں پر اجازت دیجیے مجھے, اور آپ سب جی کو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کامیاب و کامران کرے, نہ صرف اس کوئز میں بلکہ دنیا و آخرت میں اللہ تعالیٰ کامیاب و کامران کرے. آپ کو, آپ کے بچوں کو, گھر والوں کو, سب کو اللہ تعالیٰ ایمان صالح والی زندگی اور ایمان صالح والی موت عطا فرمائے, اور ہم سب پہ اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ کرم کرے کہ انشاءاللہ ہم یہ سفر جاری کو ساری رکھیں. چلیے جی, آپ اللہ کو حافظ. کے انشاءاللہ ساتھ اللہ تعالیٰ اجر دے, اور آپ کے گھر والوں کے, آپ اور کوئز کے لیے آپ کو ٹائم کھلا مل جائے گا. کسی نے میسج کیا ہوا تھا کہ ہمارا چونکہ